ट्रेनिंग में अब 9:30 बजे एंटर हो जाऊँगी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आप फोन नहीं उठाना। अच्छा, फोटो खिंचाइए आप अपना। થઈ ગયું મરચું પણ ઠીક ભાઈ I think. A lot of energy from this side. So you all had your breakfast in the morning, huh? Very excited for the event? And what about this? Are you all ready? All right, so I think you all have heard about Vestige, right? Skin Formula 9, the products, reviews, everything. You've gone through the products, so this is the first time you will be seeing and experiencing them. It would be first time, but आपने ज़रूर इनके बारे में सुना होगा. अच्छी बातें सुनी होंगी. That's nice. All right, ladies and gentlemen, once again, on behalf of Vestige Marketing, I would like to extend a very warm welcome to all of you, and we appreciate that you've taken out time from your busy schedules and graced this occasion. So the training that we will be putting in front of you today would definitely transform your lives and skins, that we guarantee you. So ladies and gentlemen, as we all know that we are here for the launch of Skin Formula 9, the first premium skincare range from Vestige.
a unique skincare brand like none other in the world, a brand that will take the market by storm and will be the toughest competition that any direct selling company has ever faced. As the privileged Vestigians to get a glimpse at this marvelous range, we welcome you to be the part of this journey. So ladies and gentlemen, before starting this event, I would like all of you to please put your hands together for Vestige and Skin Formula 9. Please, all of you, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. And as it is said that good business leaders don't create more followers, they create more leaders. Yes, we have a dignified personality amongst us. He is the managing director and co-founder of Vestige Marketing Private Limited, one of India's top 5 direct selling companies. He has previously been associated with noted MLM companies and has taken them to pinnacles of success. Mr. Bali started his professional career with a multinational pharmaceutical corporation. He then went on to work with various direct selling companies in India and abroad. Ladies and gentlemen, he's ventured on his own 9 years ago and today has gamay of successful brands to his credit. So please put your hands together for Mr. Gautam Bali. All right, ladies, we have another aspiring leader with us. Yes, he's International Business Development Head in Vestige, done his education in UK. Please put your hands together for Mr. Yuvraj Bali. And from now onwards, he'll be handling all the upcoming projects in Vestige and all the new projects in Vestige. So he's the new member of Vestige management team. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, please, फिर से. और उसी के साथ साथ we have another dignified personality amongst us. Yes, she is a PhD in biomedical sciences and microbiology from Singapore. Dr. Suchi Arora has worked on product development in international cosmetic companies. She is currently heading the research and development and product development department in Vestige. So please put your hands together for none other than Dr. Suchi Arora. So ladies, this is the management team of Vestige. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, please इनके लिए. तो आज Vestige जो कुछ भी है, जी हाँ, जो ऊंचाइयों की बुलंदियों तक इन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया है, अपने टारगेट्स को अचीव किया है, वही इस मैनेजमेंट टीम की सोच की वजह से, इनके काम की वजह से. So ladies and gentlemen, now let's take this evening forward. I think it's very beautiful to have, it's very important to have a beautiful skin, right? Beautiful and immaculate skin. I think every girl wants to be, every lady wants to be, and we just want to delay aging till the end, right? We just don't want that any signs of aging should appear. We shouldn't have those lines on forehead, those crow lines, nothing, right? So, ladies and gentlemen, today what we'd be doing, we would be discussing everything that goes into making a beautiful skin. Obviously, we are born with a beautiful skin. We are born with fair or wheatish complexion. That is not in our hands. But yes, we can change some things, and those things are, we can delay aging. We can have a glowing and immaculate skin. We can look good, we can look young. That could be done by proper diet, proper exercise, and yes, not to forget, using right kind of products. So ladies and gentlemen, we have a very, I would say, dignified and vibrant personality amongst us. Yes, she's a leading dermatologist, cosmetologist, and internationally trained laser aesthetician from New Delhi. She's a consultant dermatologist at renowned hospital and is successfully running her own skin and hair clinic at Uday Park in New Delhi. Please put your hands together for Dr. Dipali Bhardwaj. Can I have a glass of water, please? All right. Welcome, ma'am. And after that, we have another versatile personality amongst us. Yes, she's a renowned nutritionist and Ayurvedic practitioner from New Delhi. She's the director of Chain of Wellness Clinic and award-winning diet and nutrition web portal, LifeCentury.com. She's transformed the lives of millions of people. Yes, please put your hands together for none other than Dr. Deepika Malik. Wish you well and everything else. Wish you well and everything. यहाँ पे योगा कौन कौन करता है रोज सुबह उठ के?
अच्छा चलिए, काफ़ी कम लोग हैं जो योगा रेगुलर बेसिस पे करते हैं. आप में से प्लान कौन करता है कि कल से ज़रूर योगा करेंगे या अगले महीने से ज़रूर स्टार्ट करेंगे? I think everybody are like that. We just plan and then we forget it, right? We put it on tomorrow. All right, kal se, and we don't know when that tomorrow comes, right? So over here, we'll be also teaching you that willpower is very important to achieve something great in life. So you would be, also coming across that. But before that, we have another beautiful and I would say very vibrant and versatile personality amongst us. Yes, she's a certified yoga instructor from Yoga Alliance International and Shri Ma Transformational Yoga Institute. She has been practicing yoga as a way of life since childhood. She also been learning and practicing a variety of dance forms like Indian contemporary, Bollywood jazz, modern contemporary and aerial dance. Please put your hands together for stunning Miss Kavita Das. You well and everything else. Wish you well and everything else. Thank you so much. तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे एक्सपर्ट्स पैनल के लिए. So as we all know that good thing is essential for women and it's also important to take care of that, right? So what all steps you need to follow, what all products you need to use, what kind of technologies and treatments are there to have immaculate skin, that we would be discussing today. And for that, yes, we have a very honorable personality amongst us. I would like to call on stage Dr. Dipali Bhardwaj to please give a presentation on this. Thank you so much. नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको. एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर बीच में आपको किसी को भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हाथ उठा सकते हैं. जितना ये इंटरैक्टिव सेशन होगा उतना ही हम सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, राइट? तो मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ. इतनी बारी मुझे भविका ने आपको बता ही दिया है. डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन की स्पेशलिस्ट. स्किन क्या होती है? स्किन एक ऑर्गन है. ऑर्गन का मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे. ये सिर्फ त्वचा हमारे को सुंदर लगने के लिए नहीं, सिर्फ फैशनेबल या अट्रैक्टिव या सेक्सी लगने के लिए ही नहीं, ये स्किन हमें बहुत चीज़ों के लिए हेल्प भी करती है. हमें फील टच पेन की फीलिंग्स आती हैं. हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को, लिवर, किडनी, जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं उसको स्किन प्रोटेक्ट करता है. बाहर से अगर स्किन पे कोई भी डैमेज होता है तो अंदर जाने के चांसेस होते हैं. एक छोटे से कट से भी कोई पॉइजन अब्जॉर्ब होकर किसी की जान भी ले सकता है. उसी तरह गंदे केमिकल को, गंदे प्रोडक्ट्स को, गंदे कॉस्मेटिक को भी यूज़ करके हम अपनी स्किन को ख़राब भी कर सकते हैं. स्किन की 3 मेन लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. जो हम एक दूसरे के चेहरे पे ऊपर देख रहे हैं उसको एपिडर्मिस कहते हैं, जिस पे हम अपना फेस पाउडर, रूज, मेकअप, सनस्क्रीन, क्रीम कुछ भी लगाते हैं. डर्मिस वो लेयर है, अगर डर्मिस हेल्दी है, अगर आपने अच्छा न्यूट्रिशन रखा है, अच्छा खाया है, पोषक रखा है अपनी बॉडी को, तो डर्मिस के न्यूट्रिशन से आपकी एपिडर्मिस पे चमक आएगी. बाहर से सिर्फ मेकअप लगाने से नहीं फ़र्क पड़ता, अंदरूनी ब्यूटी जो होती है वो डर्मिस के थ्रू होती है. स्किन में तरह तरह के ग्लैंड्स भी होते हैं. ग्लैंड्स का मतलब वो होता है जो कि कुछ काम करे अलग तरह का, जिसकी सीबम कहते हैं, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स. कुछ लोगों में ये ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होने की वजह से त्वचा काफ़ी ऑयली लगती है. जब हम यंग होते हैं, 20s में होते हैं, टीनेजर्स में होते हैं, जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, दाने आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि सीबम दैट इज़ ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं. जब लेडीज़ की, लड़कियों की पीरियड्स जनरली स्टार्ट होते हैं तब वो ग्लैंड बनते हैं और मीनोपॉज के बाद अपने आप बंद हो जाते हैं. ये त्वचा का स्ट्रक्चर है जो आपको फोटोग्राफ दिखाई जा रही है. जो सबसे टॉप लेयर है दैट इज़ एपिडर्मिस. ये टेक्निकल टर्म याद करना थोड़ा सा इसलिए इजी होता है, जब हम किसी को भी क्रीम्स बताते हैं दिस इज़ फॉर योर एपिडर्मिस को हेल्दी करने के लिए, ये आपकी डर्मिस को हेल्दी करने के लिए है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. क्योंकि अगर हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ देंगे तो इट विल हैव बेटर रिजल्ट. डिफरेंट तरह की जो स्किन टाइप्स है, जैसे हमने डिस्कस किया ऑयली स्किन, जिसमें ऑयली ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होते हैं.
अलग होती है ड्राई स्किन। ड्राई में बिल्कुल ऑयली ग्लैंड नहीं होता। ड्राई स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें एजिंग जल्दी दिखाई देती है, रिंकल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, राइट। ऑयली स्किन में रिंकल्स कम आएंगे, धीरे से आएंगे, मगर इतनी चमकदार होगा कि बड़ा ऑड लगता है। तो बार बार अपना फेस को साफ करते रहो, पिंपल्स आते रहेंगे, पिंपल के निशान बनने की समस्या रहती है। कॉम्बिनेशन स्किन बहुत अच्छी होती है, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राई, इज़ वेरी गुड। नॉर्मल स्किन भी बहुत अच्छी है, उसमें भी ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा ऑयली और बड़ा ही नॉर्मल सा लेवल रहता है थ्रू आउट द ईयर। सेंसिटिव स्किन एक ऐसी स्किन है जो आज पैदा हुई है। किस में पैदा हुई है? उन लोगों में जो ज़्यादा मेकअप लगाते हैं, जो अपनी त्वचा पे ज़्यादा केमिकल्स लगाते हैं, अपने फेस को ध्यान नहीं रखते, क्लीन नहीं रखते, तो उनका स्किन सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव इन डॉक्टर्स लैंग्वेज मीन्स जो चेहरा लाल हो जाता है धूप में ज़्यादा, केमिकल लगाते ही इरिटेशन मचती है। इस तरह की त्वचा को जनरली अगर आप लोगों के पास आपकी कोई फ्रेंड हो, कोई क्लाइंट हो, कोई दोस्त हो, रिलेटिव हो, जिसको आपको कोई प्रोडक्ट देना हो और स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो, आई वुड सजेस्ट सिर्फ आप अपना वेस्टीज का फेस वॉश दें सेंसिटिव स्किन वाला, बाकी के लिए उसको डॉक्टर पे भेज दें जब तक उसका स्किन ठीक नहीं होता तब तक, क्योंकि जनरली ऐसे में डॉक्टर की भी आधी से ज़्यादा चीज़ें सूट नहीं करती और टाइम लगता है पेशेंट की सेंसिटिव स्किन को ठीक करने में। तो ही और शी इज़ अ वेरी इरिटेबल, बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है वो ट्रीटमेंट से। तो हमारे लिए नेगेटिव पब्लिसिटी से अच्छा कि हम उसको कहें कि 1 महीना रुक के आए। These are the photographs: dry skin, normal to dry, normal to oily, oily, right? ये फोटोग्राफ दिखा रहा है एक्स्ट्रा ऑयली, कितना चमकदार फेस है। दूसरी फोटोग्राफ दिखा रहा है एक्स्ट्रा ड्राई, कैसे त्वचा फट फट के बिल्कुल रिंकल्स बन रहे हैं, जैसे मछली की केचली जैसा होता है। नॉर्मल स्किन विच इज़ वेरी गुड। कॉम्बिनेशन स्किन भी बहुत ऑयली रहता है, बहुत ड्राई भी रहता है, कॉम्बिनेशन तरह का रहता है विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। ओके, नाउ स्किन केयर। हम इतना स्किन की बात करते हैं, इतना प्रोडक्ट्स हम सब लोग यूज़ करते हैं। आज हम फॉर्मूला 9 यूज़ कर रहे हैं, जब हम छोटे थे हमने कुछ और यूज़ किया, हम सब ने कुछ ना कुछ बहुत कुछ यूज़ किया है। इट्स वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड टू यूज़ प्रोडक्ट्स, इट इज़ वेरी गुड टू लुक अट्रैक्टिव। बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लेडीज़ के लिए ये सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में और पिछले सदियों से 100 साल से आ रही हैं। क्लियोपाट्रा मिल्क लगाती थी, हम लोग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद जानना और लोगों को बताना कि एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएं। अच्छी क्वालिटी मिनरल बेस्ड मेकअप सिर्फ यूज़ किया जाए। जो भी प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, फेस वॉश, सनस्क्रीन्स आप लोग लगाते हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके अंदर के पोषक चीज़ें हैं, अगर वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हों, अच्छी कंट्रीज से ढूंढे गए हों, स्टडीड हों, डॉक्टर्स के ट्रायल हों, एक इंटरनेशनल लेबॉरेटरी के सर्टिफाइड हों, तो दे आर ऑफ कोर्स गुड, बिकॉज उनके ऊपर कुछ ट्रायल हुई है, कुछ स्टडी हुई है, काफ़ी सारे दिमाग लगे हैं, तो प्रॉब्लम्स, रिएक्शन, सेंसिटिविटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हर तरह की स्किन की डिमांड डिफरेंट होती है। मतलब कि जैसे कि त्वचा की डिमांड 20 में अलग होगी, 30s में अलग होगी, 40s में अलग होगी। एक्सक्यूज मी। बट एक बेसिक रेजिमेंट जो सब में कॉमन रहेगा इज क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्टिंग एंड स्पेशलाइज स्किन केयर, जो हर स्किन के लिए अलग अलग रहेगा। CTM जैसे बड़ा कॉमनली कहा जाता है कि रोज़ अपनी त्वचा को क्लेंस करें, टोन करें, मॉइस्चराइज करें। प्रोटेक्ट किससे करें? हमारे एक इकलौते स्किन के सबसे बड़े दुश्मन विच इज़ सन, धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है, जो एजिंग भी लाता है, पिगमेंटेशन भी लाता है, रिंकल्स करता है, रूखापन लाता है। धूप हमारे लिए काफ़ी बुरी रहती है चेहरे के लिए। इंडिया में काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं हम डॉक्टर्स के पास। ब्लेमिशेस सबसे कॉमन है, एक्ने बहुत कॉमन है, सैकिंग स्किन, रिंकल्स बहुत कॉमन है, ऑयली स्किन भी काफ़ी लोग परेशान होते हैं, स्पेशली यंग पीपल। कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे कि फेस बिल्कुल सब कह रहे हैं चमक रहा है। 8 स्पॉट्स, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, अगर रात को अच्छे से हम 2-3 दिन ना सोएं उससे भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। अदर देन दैट जेनेटिक डार्क सर्कल्स काफ़ी होते हैं। नाउ एजिंग, हम सारे यहाँ पे काफ़ी 20+ तो लगे रहे हैं, तो एजिंग तो हर एक का एक इशू होता है, 20+ लेडी हो या 50+ लेडी हो। एजिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं, हम में से कोई रिवर्स नहीं कर सकता। हम लोग एक ही चीज़ को रोक सकते हैं कि आज हम जैसे हैं अपने आप को उस लेवल तक मेंटेन करके रख सकें। जब हम 30 हों तो हम 25 दिखें, 25 हों तो हम 20 दिखें। तो क्यों हम नहीं रोक पाते एजिंग? कोई भी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं फुली काम कर पाते? क्योंकि 2 तरह की एजिंग है, एक अंदरूनी, एक बाहर वाली। बाहर वाली तो आप रोक लेंगे अच्छे प्रोडक्ट्स जो ट्राइड हैं, जो ट्रायल्स हुए हैं, जिसके अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे धूप से बचा के। जैसे मैंने कहा, धूप सबसे ज़्यादा एजिंग का पॉजिटिव एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर का फैक्टर धूप है सबसे बड़ा एजिंग के लिए। मगर अंदरूनी जेनेटिक, हार्मोन्स और डाइट,
डाइट के लिए मेरी फ्रेंड डॉक्टर दीपिका आपके साथ डिस्कस करेंगी ही। मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है फॉलो करना, तो पता नहीं कितना ईजी है, बट हार्मोन्स एंड जेनेटिक्स नोबडी कैन चेंज, इसलिए थोड़ा बहुत एजिंग तो आएगा ही आएगा। इसलिए आप कोई क्लाइंट को अगर देती हैं एंटी एजिंग क्रीम और वो आपको कहे कि भाई हम एंटी एजिंग यूज़ कर रहे हैं, रिंकल फिर भी आ रहा है, तो आप उन्हें समझा सकती हैं कि जेनेटिक्स और हार्मोन्स है, उसकी वजह से भी होता है एजिंग। सिर्फ बाहर के धूप से या बाहर की क्रीम लगाने से रिंकल गायब नहीं होगा। Now at my clinic we make sure that we care. Care means that clients are really everything. You know, this is एक basic principle हम अपने business में, अपने काम में जो भी करें उसमें अगर हम ये लेके चलेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कमर्शियल तो हम सब हो सकते हैं मगर उसके बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स होंगे। मतलब अगर आप अच्छे से समझ के अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को प्रोडक्ट्स देंगी तो वो बेटर काम करेगा। These are the different treatments, जो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स मेरे क्लिनिक में होते हैं। ये मेरी असिस्टेंट डॉक्टर हाइड्रा फेशियल कर रही हैं, जिसमें हम फेस को क्लीन करके, पोर्स को ओपन करके विटामिन सी वगैरह डालते हैं। मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूँ स्टीम के चेहरे पे, फेशियल के, मतलब हैंड मसाज के और ब्लीच के। हम डॉक्टर्स को लगता है उससे स्किन काफ़ी ख़राब होता है, स्टीम से ओपन पोर्स हो जाते हैं, ब्लीच इज़ केमिकल, तो ब्लीच तो लगाना ही नहीं चाहिए। सो हम लोग वो प्रोडक्ट्स और वो ट्रीटमेंट्स नहीं करते, और हम अपने पेशेंट्स को भी मना करते हैं कि मैक्सिमम साल में 1 या 2 बार ये सब प्रोसीजर्स कराए जाएँ, ब्लीच एंड फेस मसाज। जिसके चेहरे पे बाल होते हैं तो सिर्फ वो बाल एरिया में ब्लीच कर ले, अगर उसको ब्लीच करना ही है। अलग ट्रीटमेंट्स जो मैं करती हूँ इस बोटॉक्स फिलर। बोटॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल है और बिल्कुल रिंकल्स को, एजिंग को गायब कर देती है, मगर टेम्परेरीली, मतलब सिर्फ 6-7 महीने के लिए जो भी रिंकल्स हैं वो गायब हो जाते हैं। एक हम पिचकारी इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो रिंकल गायब हो जाता है। फिलर भी एक उसी तरह की चीज़ है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है, जो हम कहीं भी डाल के लिप्स बनाने हो, दीपिका पादुकोणे जैसे लिप्स चाहिए, कैटरीना कैफ जैसी चीक्स चाहिए, करीना कपूर जैसा नेक चाहिए, तो ये सब इन चीज़ों से होता है और ये काफ़ी फिल्म स्टार्स इन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं। अलग अलग केमिकल पील्स होती हैं, जैसे कोई गोवा कोई छुट्टी पे हो गया है दमन, तो उसको टैनिंग हो गई है तो डी टैनिंग पील हम करते हैं। स्किन रीजनोवेशन की घर पे पार्टी है, दिवाली पार्टी है, तो हम एक स्किन रीजनोवेशन, स्किन ग्लो पील कराएं। एंटी एजिंग, जिसको रिंकल्स आ रहे हैं तो वो एंटी एजिंग पील्स कराएं। पिंपल्स, जो यंग लड़कियां हैं, यंग लड़के हैं जिनको पिंपल्स हैं, तो वो एंटी एक्ने पील कराएं। माइक्रोडर्माब्रेशन, आप में से किसी ने नाम सुना है माइक्रोडर्माब्रेशन? हाँ, नहीं। माइक्रोडर्माब्रेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है और अब काफ़ी मतलब पुरानी होके रोकी जा रही है। शायद आप लोगों ने ट्रीटमेंट शायद ना लिया हो इसलिए, बट ब्यूटी पार्लर्स में भी बहुत कॉमन है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, जिसमें कागज़ जैसी चीज़ को घिसा जाता है चेहरे पे, और फेशियल में शायद हुई भी हो। इंट्रालीजनल इंजेक्शंस, बोटॉक्स फिलर, डर्मा रोलर एक चीज़ होती है जिसमें एक चीज़ रोल करी जाती है चेहरे पे गड्ढों को गायब करने के लिए। IPL एक तरह का लेज़र होता है, और अलग तरह के लेज़र्स होते हैं जिनका नाम है स्मार्ट एक्साइट 2। ये नाम हमारे लिए थोड़ा जानना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो हमारी फील्ड में और क्या क्या होता है। स्मार्ट एक्साइट 2 एक तरह का लेज़र है जो CO2 टेक्नोलॉजी होता है। इस लेज़र से गड्ढों को, स्कार्स को हम डर्मेटोलॉजिस्ट गायब करते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड या क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे गड्ढे हैं और मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ और नहीं गायब हो रहा, तो कोई भी गड्ढा, कोई भी स्कार सिर्फ क्रीम से, किसी भी वर्ल्ड की क्रीम से नहीं गायब हो सकता। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं ये मानती हूँ, मगर आप उसको हल्का फुल्का फेड कर सकती हैं, थोड़ा ऊपर ला सकती हैं, बट अगर कुछ स्किन मिसिंग है तो उसके लिए लेज़र ही होगा, ये जानना ज़रूरी है। इंस्टेंट थ्रेड लिफ्ट एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम एजिंग, जो ये थोड़ी सी भी सैगिंग हो गई है, इसमें हम धागे डाल के चेहरे को पुल अप कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। जिनको डबल चिन्स हैं, फेस पे फैट है, वो भी कम करा जा सकता है। दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ पेशेंट विद केमिकल पीलिंग। जब केमिकल पीलिंग हम करते हैं तो चेहरा अगले दिन ऐसा काला डॉट डॉट लगता है, फिर ठीक होता है। सो इट्स अ प्रोसेस ट्रीटमेंट। अगर आपकी कोई क्लाइंट केमिकल पील्स कर रही हो, उसके साथ आप अपने प्रोडक्ट्स दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं, बस ये कहिए कि पील से 2 दिन पहले और पील के 2 दिन बाद आपका प्रोडक्ट ना यूज़ करें। These are results of chemical peeling before and after, before and after. This is derma roller जिसकी मैं बात कर रही थी। रोलर जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत कॉमन है यहाँ पे गुजरात में, जो डॉक्टर्स यहाँ पे गड्ढों को, स्कार्स को इसके ऊपर रोल करके गायब करते हैं। इसमें भी वही, इसमें आप रोलर में तो आप अपना प्रोडक्ट 1 दिन पहले तक भी दे सकती हैं, बस रोलर जिस दिन हुआ है उसको क्लाइंट को बोलिए 2 दिन तक ना यूज़ करें ताकि स्किन सेंसिटिव ना हो। दिस इज़ बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स ऑफ डर्मा रोलर। ये स्कार्स के लिए, गड्ढों पे काम करता है, जैसे आप देख रहे हैं। ये डर्मा रोलर एंड केमिकल पील्स का कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसको एक्ने भी था और गड्ढे भी हैं।
दिस इज़ इंस्टेंट थ्रेड लिफ्ट, जैसे आप देख रही हैं नेज़ोलेबियल लाइन, इसको उठाया गया है। नेज़ोलेबियल लाइन को लाफ्टर लाइन भी कहा जाता है, ये वाली लाइन जो हम सब में आ जाते हैं, मंकी लाइन बोला जाता है बहुत कॉमनली मैगजीन्स वगैरह में। ये लेज़र हेयर रिडक्शन मशीन है मेरे क्लिनिक पे, जिससे बाल हटाए जाते हैं बॉडी पे। ये आज की डेट में एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है। इसके साथ भी आप अपने प्रोडक्ट दे सकती हैं, बस जिस दिन लेज़र हुआ है उस दिन क्लाइंट को कहिए उस दिन ना कराए, उस दिन आपका प्रोडक्ट ना यूज़ करें। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लेडीज़। ये हम सब के लिए पर्सनली भी बहुत ज़रूरी है कि रोज़ दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना, चेहरे को दिन में 3 बारी धोना, सुबह और रात को, और दिन में बीच में जब भी हम पोल्यूशन से वापस आते हैं। अपनी त्वचा की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रात को कभी भी मेकअप के साथ ना सोएं, चेहरे पे, आँखों पे, होठों पे मेकअप के साथ सोएंगे तो होठ डार्क हो सकते हैं। नेवर स्लीप विदाउट क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जिस तरह हम दिन भर अपने पेट के लिए खाना खाती हैं, सर दर्द हो रहा है चलो कुछ खा लें, ये भी बहुत कॉमन चीज़ है। उसी तरह रात को सोते वक्त त्वचा पे क्रीम ज़रूर लगाएं, त्वचा को वॉश करके उसके ऊपर कुछ मॉइस्चराइजिंग प्रोटेक्शन करें, क्योंकि वो स्किन के लिए एक तरह का फूड है। जब हम सोते हैं तो हमारे स्किन पे जो लगता है वो एक तरह से न्यूट्रिशन की तरह अब्जॉर्ब करके स्किन अच्छे से यूज़ करते हैं। ये एक मिथ है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि रात को कुछ लगाना नहीं चाहिए, त्वचा को ओपन छोड़ दो, सांस लेगी त्वचा, ऐसा कुछ नहीं है। SPF डज़ नॉट मैटर, जो मैटर करता है कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। SPF एक तरह का गिमिक होता है, आप क्लाइंट्स को समझा सकती हैं कि सिर्फ सनस्क्रीन लगाना है। कैसे लगाना है? धूप में जाने से 10 मिनट पहले लगाइए, और अगर आप 3 घंटे बाद धूप में हैं तो दोबारा लगाइए। ये बहुत इंडियन महिलाएं नहीं लगाती हैं, वो एक बार ही लगा के चल पड़ती हैं। मैं खुद भी पहले ऐसा करती थी, मगर अब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकती। ठीक है, सो यू हैव टू इनकल्टिवेट दिस हैबिट। आपको अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स को भी बोलना ज़रूरी है, जो चाहते हैं कि वो गोरा लगना चाहते हैं, त्वचा को मेंटेन रखना चाहते हैं। सुबह लगाएं और दोपहर के खाने से पहले फिर लगाएं सनस्क्रीन, अगर बाहर जा रहे हैं तो। सिंपल। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, हमें हंसते रहना चाहिए अगर हमें अपनी त्वचा को अच्छा रखना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अंदर से, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपकी डर्मिस हेल्दी, आप अच्छा खा रही हैं, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं ले रही, योगा कर रही हैं, फ्रूट्स खाती हैं, रोज़ पानी पी रही हैं 4 से 5 लीटर, तो आपकी त्वचा अपने आप एक ग्लो लेके आएगी। यू हैव टू बी नेचुरल, मतलब जो प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हैं उस क्रीम्स वगैरह में ज़्यादा केमिकल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा परफ्यूम नहीं चाहिए हमको कि वो इरिटेट करे या स्मेल अच्छा हो, नहीं, हमें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ। जो भी मेकअप यूज़ करें क्वालिटी अच्छा होना चाहिए एक प्रोडक्ट का, मेकअप का, along with a healthy and balanced diet. So this will be the range जो आपको अभी थोड़ी देर में लॉन्च करी जाएगी, स्किन फॉर्मूला 9, and it is really a range which can transform people's life. Reason for that is क्योंकि इससे वाकई में radiant and flawless skin पाना बहुत easy है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिसर्च की गए हैं लेबॉरेटरीज ऑफ स्विट्ज़रलैंड में। इसकी यूनिक ब्लेंड है साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का। इट हैज़ बीन टेस्टेड टू डिलीवर रिजल्ट्स विद रेगुलर एंड प्रॉपर यूज़, कि इसको अगर रेगुलरली और प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो इसके ऊपर टेस्ट भी करे गए हैं इस प्रोडक्ट्स के। और इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस क्रीम्स के अंदर हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ दुनिया से लेके उनको टेस्ट करके बनाया गया है। सो थैंक यू, एंड एनी क्वेश्चंस फॉर मी प्लीज़? कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता होगा? या जी जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सनस्क्रीन लोशन के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करते तो उसको थोड़ी देर के बाद एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ऑयली स्किन होती है, पसीना होता है। बिल्कुल ठीक। और मैंने भी वो ट्राई करके देखा, मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती, मेरा बाहर जाना नहीं होता इसीलिए जी। तो उन लोगों को कैसे उसका सॉल्यूशन हम क्या दें? देखिए, हमें ये जानना कि हमारी स्किन क्या टाइप है, उसके हिसाब से सनस्क्रीन लेना ज़रूरी है। और अगर आपको अपना वेस्टीज का सनस्क्रीन देना है, किसी को वो चमकदार और ऑयली लगता है तो उसको बोलो उसमें लैक्टोकैलामाइन मिक्स कर ले, या नॉर्मल बॉडी पाउडर थोड़ा सा डाल के मिक्स कर ले तो ऑयलीनेस कम हो जाएगा। जिसको वो भी ड्राई लगता है तो उसको बोलो वो ज़्यादा लगा ले। थैंक यू। यस, या प्लीज़। मैम, अगर किसी को हेरिडिटी प्रॉब्लम है, किस चीज़ का? जैसे पिंपल्स होते थे उनको, लेकिन पिंपल्स होने के बाद में ठीक होने के बाद जैसे स्किन नॉर्मल होती है ना, वैसे नॉर्मल नहीं होती उनकी, उनको गड्ढे ही हो जाते हैं स्किन में। जी। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं मेरे डाउन लाइन, तो वो खुद नहीं बात कर सकती? हाँ, वो बहुत शर्माती है। इधर आओ, आगे आओ। हाँ जी। अगर आप पर्सनली देखना चाहें तो वहाँ पर
देख लीजिए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराई हुई है। देखिए गड्ढों, आप आगे आ जाइए। गड्ढों के लिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, कोई क्रीम कोई प्रोडक्ट्स नहीं हेल्प करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट्स ही करने पड़ते हैं। मैं अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स करती हूँ। स्कार्स में मेरी इनफैक्ट स्पेशलाइजेशन है, मेरा स्पेशलाइजेशन है स्कार्स, पिगमेंटेशन और बाल। इधर आओ बेटा, दिस साइड प्लीज़। मैम उसने ये सब भी स्किन ट्रीटमेंट भी कराई हुई है, उसके बाद में भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके तो इसके लिए सॉरी टू से बट कोई प्रोडक्ट नहीं काम करेगा। मैं अगली बारी सूरत आई तो आप सुची को मेल डाल देना, मैं अपने प्रोडक्ट साथ ले आऊँगी, एक ट्रीटमेंट यहीं कर दूँगी इसका। राइट तो इसमें हम डिफरेंट लेज़र्स और डर्मा रोलर कर सकती हैं। यहाँ पे जो डर्माटोलॉजिस्ट हो मैं पता कर लेती हूँ कौन है सूरत में, अगर सो आई कैन सेंड टू हर। एंड स्कार्स के लिए आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। आगे से जो भी पिंपल आता है बहुत ज़रूरी है उसको ऐसे ऐसे करके निकाले ना, ऐसे करके निकालोगी, ब्यूटी पार्लर से निकालोगी। जिनकी स्किन पे स्कार्स होते हैं, हम में से जो भी आप लोगों में ब्यूटिशियंस हैं, वो कभी भी जिसकी चेहरे पे और निशान लगे ना, उसके पिंपल्स को ऐसे नहीं निकालना। एक बार ही कोशिश करना, निकले तो निकले, नहीं निकले छोड़ दो, क्योंकि उसको गड्ढा पड़ेगा। जिसका स्किन में टेंडेंसी है उसको क्यों हम नहीं निशान दें। तो आपको कभी भी पिंपल्स होंगे आप उसको खींच खींच के नहीं निकालेंगे। ऑयली फूड कम खाएंगे, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह, सैलड्स वगैरह ज़्यादा खाएंगे, उससे दाने कम बनते हैं। पीरियड से पहले 1-2 दिन पहले हमेशा सबको दाने आते हैं, उन दिनों कोई भी फेस वॉश यूज़ करें जो एक्ने के लिए ज़्यादा मेंट हो, जो चेहरे को ड्राई करे, मतलब राइट। मेरा स्किन ऑयली है और अभी मतलब मेनोपॉज पीरियड चल रहा है मेरा जी, तो वो हिसाब से कभी पीरियड लेट से आता है, ऐसा होता है। और उसमें पहले पिंपल्स बंद हो गए थे और अभी वापस पिंपल्स आने लगे। बहुत मतलब अच्छी बात है। नॉनी स्टार्ट किया ना, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आने लगे थे। तो क्या है कि उसका मुंह निकलता नहीं है तो बाद दाना भी नहीं निकलता है। राइट तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अंदर बैठते ही नहीं है दाने फिर। देखिए आपको एक तो स्पिरुलिना ज़रूर लेना चाहिए अगर आप ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये जो दाने आते हैं ना, ये मीनोपॉज की वजह से भी आते हैं। सडनली आपकी बॉडी में, हम सब की बॉडी में आफ्टर 50 फीमेल हार्मोन कम होने से मेल हार्मोन बढ़ता है। जब मेल हार्मोन बढ़ता है तो दाने आने की टेंडेंसी होती है। जिसका स्किन ऑयली होता है सिर्फ उसी को आते हैं। और ऑयली स्किन की सबसे बड़ा फ़ायदा कि तुम ऐसी ही लगोगी, मैं 5 साल बाद भी यहाँ आऊँगी तो आपका स्किन काफ़ी हद तक मैं आपको पहचान जाऊँगी, क्योंकि आपको रिंकल्स कम बनेंगे। राइट, हर एक स्किन का फ़ायदा नुकसान होता है। मगर आपको पिंपल्स रोकने के लिए एंटी एक्ने फेस मास्क यूज़ करना ज़रूरी है। फॉर्मूला 9 में एक स्लीपिंग मास्क भी है जो आप हफ्ते में 2 दिन लगा सकती हैं, और एक बहुत अच्छा एंटी एक्ने टी ट्री ऑयल एंड ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह कंटेंट्स का अभी आपको सूची बताएंगी, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है वेस्टीज में, वो आप लगा सकती हैं लाइक अ फेस मास्क। ओके। और मैं अभी मुझे सनबर्न हो गया था जी, तो उससे जैसे अपना वो रेत फेस पे कैसे लगती है, ऐसे बहुत बारीक बारीक दाने, ऐसे हाथ लगाओ ना तो ऐसे बारीक बारीक दाने जैसा हो गया था। हाँ जी। तो अभी एक अपना ब्यूटिशियन ने मुझे ट्यूब लिखवाया था बाहर से, तो वो लगाने के बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर भी अभी एकदम तो नहीं गया है। और मैं इसकी वजह से रात को मुल्तानी मिट्टी रोज़ वाटर घर पे लगाएं। अच्छा। इसमें और लैक्टोकैलामाइन लगाएं सनस्क्रीन में मिक्स करके। अगर तब भी नहीं जाता है तो आप रात को एक क्रीम लगा सकती हैं जिसका नाम आप लिख सकती हैं अगर आप चाहें। अच्छा। DERIVA, D for Delhi, E for England, R for Rambo, डेरिवा, DERIVA, जगह छोड़ के C स्पेस MS जेल, डेरेवा CMS जेल। ये एक नेशनल ब्रांड है जो केमिस्ट पे मिल जाएगा आपको, जो इन दानों पे आप लगा सकते हैं, मगर घर के नुस्खे ज़रूर पहले करिएगा जैसे मैंने कहा। ओके। और क्लींजर टोनर से पोर्स खुलते हैं क्या? क्योंकि मैंने वो राइट, आपको जब भी दाने आ रहे हो प्लीज़ कभी भी टोनर नहीं यूज़ करना होता। अच्छा, उसकी वजह से मेरे पूरे पोर्स खुल गए थे और बहुत खड्डे खड्डे लग रहे थे। बंद करेंगे आप टोनर नहीं यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैम जी, ये हाय, मुझे पिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ें यूज़ की पर कुछ भी असर नहीं किया। तो वेस्टीज में एलोवेरा कैप्सूल है और फेस पैक है, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पिंपल जैसे 1, 2, 3 जो निकले हुए हैं वो अच्छे होते हैं और उनके बाद कंटिन्यू वो निकलते ही रहते हैं। पूरा अच्छे clean नहीं मतलब होता है। बड़े हो जाते हैं? अच्छे जी नहीं, पल गायब हो जाते हैं जी, हो जाता है। राइट, वो बंद नहीं होते हैं, आ जाते हैं। आप चाहती हैं आप आगे आ जाइए अगर स्किन दिखाना चाहते हैं।
देखिए जब भी पिंपल्स आते हैं, मैंने आपको एक जेल का नाम बताया, वो आप ऐड कर सकती हैं अलॉन्ग विद जो मैंने आपको कहा। सुचि अभी आपको एक प्रोडक्ट बताएंगी जो उन्होंने नया लॉन्च किया है, जिसमें टी ट्री, ग्लाइकोलिक एसिड और अलग अलग तरह के एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो काफ़ी सुंदर और स्माइलिंग फेस हैं, शर्मिंदा कभी नहीं होना होता है स्किन के लिए। बीबी क्रीम लगा सकती हैं, मेकअप लगा सकती हैं ऐसे कभी नहीं बोलते एज ए लेडी। एंड देखिए एक्ने को रोकने के लिए आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपका कॉज हार्मोनल लगता है। इस तरह के जो दाने आते हैं एक तरह से लाइन में, उसको हम डॉक्टर्स हार्मोनल मानते हैं। तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट में बेशक जब नीचे आऊँगी तब लिख के दूँगी, वो ब्लड टेस्ट करा के आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, वाटर से आपकी बॉडी पूरी नॉर्मल रहेगी, और अगर हार्मोन्स डिफेक्टिव हैं तो ये दाने आ रहे हैं तो हमें ब्लड टेस्ट तो करने पड़ेंगे। पानी आप कभी भी पिएं दिन के 4 से 5 लीटर, जैसे डॉक्टर ने कहा है, तो इस तरह की छोटी बॉटल में एक बार ही पीना चाहिए। ये नहीं कि अभी बैठ के गट 2 लीटर पी लो, डॉक्टर ने कहा है 2 लीटर दोपहर को पी लो, नहीं। उस तरह किडनी पे बहुत प्रेशर आता है और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बहुत होते हैं बॉडी को। या प्लीज़। ये बहुत अच्छा है टूथ टैटू आपका। देखिए ये जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, इसको LPP कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये जनरली जेनेटिक माना जाता है, या बचपन में कभी किसी को क्लोरोक्वीन या मलेरिया की दवाई दी जाती है तो उसकी बॉडी पे इस तरह का ज़ीब्रा का जैसे इधर उधर पिगमेंट आ सकता है। ये ठीक नहीं होता, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि ब्राइटनिंग सीरम यूज़ करो, स्किन पे ग्लो मेंटेन रखो, ग्लूटाथियोन, विटामिन C खूब खाओ। विटामिन C और एलोवेरा और स्पिरुलिनोनी कैप्सूल्स वगैरह खाएंगी तो उससे बॉडी में ग्लो रहेगा। और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं ताकि फैले ना, राइट? हाँ जी, सनस्क्रीन यूज़ करना होता है धूप में जाने से 15 मिनट पहले। डॉक्टर्स के लिए धूप भी है जो आप लोगों को पता है, दूसरी ये भी धूप है, ठीक है? ट्यूबलाइट भी धूप है, कंप्यूटर भी धूप है, और जब आप गैस पे कुछ खाना बनाती हैं तो वो भी आँच धूप है। एक्सक्यूज मी मैम। या मैम, एक्सक्यूज मी। यस, कैन आई कम टू यू? प्लीज़ कम। या आई हैव टू आंसर यस। देखिए आप, है ना जी, नहीं, फेस पे कभी भी वैक्सिंग नहीं कराना है, उससे स्किन पे एजिंग आ जाती है। अगर आप यहाँ पे या कहीं पे भी वैक्सिंग कराते हैं तो वो स्किन खुरदरी हो जाती है। स्किन का कॉम्प्लेक्शन हमारा सबका वही हो सकता है जो कान के पीछे हो। सब आप अपना घर जाके कान के पीछे का रंग देखना, जो वो रंग है वो कोई भी डॉक्टर कोई भी प्रोडक्ट आपको दे सकता है। अगर यहाँ पे काला है तो ये नहीं कि और गोरा हो सकता है बॉडी। तो जो हमारा यहाँ का कलर है वो मेंटेन करने के लिए एक सिंपल ट्रीटमेंट है। वेस्टीज का सनस्क्रीन यूज़ करिए, फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग सीरम शाम को, नाइट क्रीम रात को, नोनी कैप्सूल, एंड आप स्लीपिंग मास्क यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 2 दिन। उससे स्किन पे काफ़ी ग्लो एंड कॉम्प्लेक्शन बेटर होगा। हेलो, प्लीज़ लास्ट क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल आपका क्वेश्चन मैं ऊंचा से बोलूँगी ताकि सबको फ़ायदा हो। इन्होंने बोला कि पिगमेंटेशन पे इचिंग होती है। पिगमेंटेशन पे इचिंग का मतलब वो सन सेंसिटिव है, मतलब धूप से आपको इस तरह का लाइट से खुजली होता होगा। रात को सोते हुए तो नहीं होता ना, वो धूप से एलर्जी है। इसका मतलब तुमको सनस्क्रीन आपको ज़्यादा लगाने का है। ये पिगमेंट जो हम लेडीज़ में आता है, ये हार्मोन्स की वजह से, धूप सेंसिटिविटी की वजह से आता है। जो लेडीज़ गाड़ी ड्राइविंग करती हैं, बाइक चलाती हैं, उन्हीं को आता है। हम जैसे वर्किंग लेडीज़ पे ज़्यादा आता है। तो आपको सनस्क्रीन लगाना दिन में 2 या 3 बार ही बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ पूछ लीजिए। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। कंटिन्यू। ओह, भविता सिंह, यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस। आप एक
कैप्सूल का नाम लिखिए जो मैं सबको, देखिए जब भी एक लेडी, एक महिला अगर अपनी 1 मिनट, कोई भी लेडी जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, मतलब अबव 35-40 ईयर्स ओल्ड, जिसने बच्चा नहीं करना है, तुम उसको एक कैप्सूल दे सकती हो। जैसे कि इनका नहीं करना है या बेबी, तो आपको एक कैप्सूल आप लिख सकती हैं जिसका नाम है सॉट्रेट, SOTRET। आप हंसिए मत, ये तो ज़रूरी चीज़ें, हम तो लेडीज़ ही हैं। SOTRET 10 मिलीग्राम। ये एक रोज़ रात को खाइए 4 महीने को, तो चेहरे से जो ऑयलीनेस एक्सेसेस हो रहा है वो कम हो जाएगा। और मुल्तानी मिट्टी रोज़ वाटर पैक आप लगा सकते हैं घर के नुस्खों में, अलॉन्ग विद दिस वेस्टीज प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं। माय नेम इज़ योगिता पंचोली, एरोमा थेरापिस्ट हूँ। फ्लावर एक्सट्रैक्ट थेरापी से मैं काम करती हूँ, लेकिन मेरी स्किन का जो प्रॉब्लम है मैं मैम को बताऊँगी। ज़रूर। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है बताइए, पूरी स्किन के ऊपर ये कभी भी आ और बहुत स्कार थे। मैंने नॉर्मल स्पिरुलिना और फ्लेक्सी तीन गोली का कोर्स है, अभी 50% कम है। एक्सीलेंट। इन्होंने कहा कि इन्होंने, आप एक अपने पास पेपर पेन लिखिए, मैं एक नाम बताऊंगी दवाई का। इन्होंने नोनी स्पिरुलिना खा के काफ़ी अपना स्किन को बेटर किया है, अरोमा थेरेपी से बेटर किया है। बुरा मत मानिएगा, बट मैं एक स्किन डॉक्टर हूँ, तो मैं मानती हूँ कि जिसको पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा अरोमा के प्रोडक्ट्स कम यूज़ करने चाहिए, ये हम डॉक्टर्स मानते हैं, अपने चेहरे पे स्पेशली। दूसरा, जहाँ पे इस तरह के काले निशान हो उस पर लगाने का क्रीम का नाम है मोमेट, MOMATE, मोम, MOMATE। ये क्रीम आप सुबह शाम लगा सकती हैं और इसके ऊपर अपना फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग सीरम लगा सकती हैं। ये आप 1 महीने करके देखिए, इसमें गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा पिगमेंट, उसके बाद सिर्फ ब्राइटनिंग सीरम लगाते रहिए। या प्लीज़। हेलो। या हाय। हाय। अभी मुझे जो प्रॉब्लम है स्किन का, मैं एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी हूँ, फिर भी मेरी स्किन के लिए मैं आपके साथ मेरा क्वेश्चन शेयर करूँगी। मुझे कोई भी स्किन के ऊपर कोई भी चीज़, मतलब जैसे स्क्रैच भी हो जाता है, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं तो स्क्रैच हो जाता है, या पेपर से भी ऐसे हो जाता है। हाँ। उसके बाद रेड हो जाता है, वो तो नॉर्मल होता है। हाँ। लेकिन उसके बाद वो वाइट भी हो जाता है, उठा हुआ हो जाता होगा। हाँ, कुछ उठा हुआ हो जाता है, उसके बाद भी रिमूव हो जाता है, तो वो वाइट लाइन हो जाती है। वेरी गुड। इसका मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, टचवुड कर लीजिए। थैंक यू। हाँ, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इम्यूनिटी के लिए तो वेस्टीज का जो अपना नोनी है वो भी यूज करती हूँ काफी। और स्पिरुलिना भी खाइए, खाली नोनी नहीं। कंटिन्यूस है मेरा, जब से प्रोडक्ट यूज करती हूँ। एक्सीलेंट। लेकिन विटामिन ई के लिए अपने पास अपना उसमें कौन सा ले सकते हैं? आपके में वेस्टीज में आया ना सुचि, विटामिन ई है ना एक, बट हमारे पास फ्लैक्स ऑयल है ना। फ्लैक्स ऑयल तो है ही जी। हाँ, फ्लैक्स ऑयल खा सकते हैं आप। और ओके। एंड वैसे आप अगर नोनी और स्पिरुलिना ले रही हैं एज अ डॉक्टर, मैं कहूँगी विटामिन ई मत लो, फूल जाओगे। बहुत मुश्किल से हम लोग पतले होते हैं। विटामिन ई इज़ अ फैटनिंग विटामिन, कोई ज़रूरत नहीं है व्हेन यू आर टेकिंग नोनी एंड स्पिरुलिना। फ्लैक्स ऑयल लीजिए, उसको भी सिर्फ मतलब हफ्ते में 5 दिन कर लीजिए, सैटरडे संडे छुट्टी, दिस मच इज़ इनफ। अच्छा डाइट, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब खाइए। ओके। फ्लैक्स सीड से थोड़ा बॉडी पुट ऑफ होता है? पुट ऑफ मतलब थोड़ा बढ़ता है? वेट गेन? नहीं, नॉट एट ऑल। फ्लैक्स ऑयल इज नॉट फैटनिंग। नो। ओके, थैंक यू मैम। या प्लीज, नेक्स्ट इज हेयर फॉलिंग के लिए आप नोनी यूज़ करिए और शैम्पू है। हाँ, नोनी यूज़ कर रही हैं ना आप एक लोशन का नाम लिख सकते हैं विच इज़ एंटी हेयर फॉल, बट आई थिंक वो सूरत में नहीं मिलेगा। हम बहुत जल्दी सूची रिसर्च करके लेके आएंगी। एक वेस्टीज का हेयर ऑयल है जो आप लगा सकती हैं, उसी में आप मस्टर्ड सीड पाउडर क्रश करके लगा लीजिए। मस्टर्ड सीड पाउडर इज़ नोन टू कंट्रोल हेयर फॉल, तो वो आप रात को लगा सकती हैं घर के नुस्खों में अपने ऑयल के साथ। जो भी शैम्पू यूज़ करती हैं, माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए एंटी हेयर फॉल वाला। बायोटिन, विटामिन H, बायोटिन खाना चाहिए आपकी डाइट। अगर वेजिटेरियन है, अगर आप एग वाइट ले सकती हैं बहुत बढ़िया, चिकन ले सकती हैं, फिश ले सकती हैं बहुत बढ़िया, वरना सोया प्रोटीन, पनीर भी हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। या लास्ट क्वेश्चन जी। तो उन लोगों को हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आप एक बारी माइक पे पूछिए ताकि सब। हेलो।
आई एम पल्लवी पटेल फ्रॉम अहमदाबाद जी। जैसे ये स्किन का आपने बोला, अभी टीनेजर में ज़्यादातर बैक साइड और हाथ की साइड बहुत पिगमेंटेशन होते हैं, तो उनको हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल ट्रू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सबको हमारे काफ़ी अच्छा टॉपिक डिस्कशन हो जाएगा। मोर प्रॉब्लम्स है मेन टीनेजर, लाइक बैक साइड बहुत होते हैं, कहीं लोगों को एकदम पक जाती है, करेक्ट, और उनको पेन बहुत और होता निशान है। भी छूटती है। आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एक बड़ा सिंपल नुस्खा है, जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करती हैं, आई थिंक वेस्टीज का भी आएगा जल्दी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, सुची विल ब्रिंग इन, बट तब तक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, हेड एंड शोल्डर्स क्लिनिक जो भी वगैरह, तो उस शैम्पू को ही पेशेंट को, क्लाइंट को बोलिए अपना कि उसको बैक पे लगाने का 5 मिनट रुक के फिर धो देने का, लाइक अ लिक्विड सोप। तो बैक पे जहाँ भी दाने हैं वो लगाने हैं, लाइक अ ट्रीटमेंट। दूसरा जो मैंने आपको जेल का नाम बताया, डेरेवासी MS जेल, वो आप कह सकती हैं बैक पे सुबह शाम लगाए, ठीक है। तीसरा आप एंटी एक्ने, उसको सोप, जो आपको लोशन मैंने बताया, जो सुची अभी बताएंगी, वेस्टीज में एक आया है विद टी ट्री ऑयल, ग्लाइकोलिक, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें, एंटी एक्ने की जल्दी आने वाला है, उसका भी लॉन्च होगा, तो वो आप बैक पे दे सकते हैं। थैंक यू। मुझको है यकीन। ऑलराइट लेडीज, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज ऑल ऑफ यू डॉक्टर दीपाली के लिए। और आप सबको बताऊं कि एक बार एक साइकोलॉजिकल सर्वे हुआ था, जिसमें ये जो सर्वे ले रहे थे, यानी कि जो रिसर्च साइंटिस्ट थे, उनका जो सब्जेक्ट था वो ये था कि एक आम लड़की अपने आप को किस तरीके से देखती है और दुनिया उनको किस तरीके से देखती है। तो उन्होंने एक आम लड़की को, जैसे एक्स को लिया और फिर उसके फ्रेंड्स को लिया। तो सर्वे में ये आया कि मिस एक्स है वो अपने आप को एवरेज देखती है, और मिस एक्स के जो फ्रेंड्स हैं वो अपने आप को वेरी ब्यूटीफुल या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द यूनिवर्सिटी ऐसे देखते हैं। तो ये माना गया कि ऑलमोस्ट 80% जो विमेन है वो अपने आप को हर पल अंडर एस्टिमेट करती रहती हैं, या फिर लुक्स को लेके करती हों, या फिर अपने बालों को लेके करती हों, या अपने फिजिक को लेके करती हों। और वो 80% विमेन का कॉन्फिडेंस, अगर उनको लगता है कि अगला बंदा उनसे सुपीरियर है, तो वो उसी टाइम पे लो हो जाता है। तो आपसे हम बस यही कहना चाहेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने आप को कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट मत समझे किसी के सामने भी। हर किसी के कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं जो कहीं ना कहीं छुपा रहा होता है, कोई मेकअप से छुपा रहा होता है, या फिर कोई फुल स्लीव डाल के अपनी आर्म्स की टैनिंग छुपा रहा होता है, या फिर बैक पे कोई स्क्रैचेस होते हैं तो वो कवर कर रहा होता है। तो हम हर किसी के फ्लॉज होते हैं, सो दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। इससे ऑब्सेसिव होके हर बार अपना मूड ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं होता। नुकसान हमका ही होता है। ऑब्वियसली वी क्रिएट सो मच ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑल अराउंड दैट आवर कॉन्फिडेंस गोज लो, एंड मोर whatever things we do, we can't give 100% in that. So it's very important to have right kind of attitude, to have a positive attitude, and then go out for your work, or then approach somebody. It's very important. Your confidence would be full on, and then you will get positive results. So it's very important to be confident, right? So now let's move forward. तो यहाँ पे I'm sure इतनी ladies को मैंने देखा, किसी को कोई problem है, बस पूछ लो आज की they're so tense regarding their skin. It's all right. हम सबको problem है, मुझे भी बहुत pimples निकलते हैं, मैं भी मेकअप करके छुपाती हूँ। I'm sure हम में से कितनों को problems रहती होंगी, we all cover it. It's all right. It's perfectly normal. कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और मैंने ये देखा है, when we have problems और अगर हम उसके लिए और टेंशन लेते हैं तो वो और बढ़ती है, rather कम नहीं होती है। If you feel like oh it's okay यार, जाने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, तब obviously it gets decreased. मैंने हमेशा अपने पे एक्सपेरिमेंट किया है, और मैंने ये देखा भी है, जब मुझे पिंपल होता है तो मैं उसके लिए जब भी बहुत ज़्यादा वरीड होती हूँ कि यार जा क्यों नहीं रहा, 1000 नुस्खे ट्राई करती हूँ, मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ या ऑयल लगाती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ, तो ऑब्वियसली इतने टाइम लेता है जाने में। एंड व्हेन आई एम जस्ट टेंशन फ्री, आई जस्ट डोंट केयर, इट गोज आउट द सेकेंड डे. So just vibrations that you're putting on, that works, right? So now let's move forward, and we have another, I would say, very charming personality amongst us. Yes, इन्होंने ना जाने कितने लोगों के वेट कम किए हैं, 40 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 70 किलो तक इन्होंने वेट कम किए हैं 2 सालों में, 1 साल में. So ladies and gentlemen, वो I'm sure हम लोग रोज़ डाइट करते हैं, we try to maintain our diets every day. We try to put in sugar free or Splenda in our diet so that we don't take more calories, and with that we also want to have nutritious food so that our skin keeps glowing, या फिर fruits ज़्यादा खाते हैं, or we take more juices or something like that. But the question is, what is right and what is wrong, right? हम नेट पे इतनी ज़्यादा डाइट्स अवेलेबल हैं और हमारे आसपास इतने सारे लोग हमें बताने को हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, which path to follow, that's very important. So she is with us
she would be, you know, emphasizing on what to eat, how much to eat, what is the right quantity, and what all nutritions are important to have immaculate skin. So obviously we all know nutritious food is very important to have immaculate skin, but किस तरह से खाएं, कैसे खाएं? I think that's also an important subject that we would be discussing today. So not taking your more time, I'm sure मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, तो आप चाहते होंगे कि मैं जल्दी से स्टेज से जाऊँ, and I would definitely now like to call over here Dr. Deepika Malik. Thank you so much. And everything else. Good morning, everyone. So I can see, you know, few people smiling, but I would love अगर आप सब थोड़ा सा मुस्कुरा दें, because हम वही बात कर रहे थे, अगर आप मुस्कुराते हैं तो आप ज़्यादा प्रिटी लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं और स्ट्रेस दूर भाग जाता है. तो एक ब्यूटीफुल स्माइल आप सबकी तरफ से मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा. That's better. All right. तो मैं यहाँ बात करूँगी फूड एंड यू. खाना और आपके बीच में क्या रिलेशनशिप है, खाने से कैसे हम अपनी ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं. अभी हमने बात की कि एजिंग ऐसा प्रोसेस है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे फूड एंड यू. ये कहा जाता है कि जो स्किन है ये आपकी बॉडी का मिरर है. आप किस तरह का खाना खाते हैं वो आपकी स्किन पर नज़र आता है. अभी मैंने देखा था काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एक्ने निकलते हैं और कुछ लोगों को ये परेशानी है कि उनकी स्किन ड्राई है. तो ये सब फूड से भी रिलेटेड है. जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत जंक फूड खाते हैं, तो आपकी स्किन एक्ने प्रॉन हो सकती है. इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं जहाँ पर आपने बिल्कुल ही ऑयल बंद किया हुआ है, बॉयल सब्जियाँ खा रहे हैं, तो या स्टार्वेशन कर रहे हैं, तो इस तरह की डाइट लेने से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और रिंकल्स जल्दी हो सकते हैं. तो जिस तरह का भी आप खाना खाएंगे वो आपकी स्किन पर नज़र आएगा. इसीलिए हमारी जो स्किन है उसको मिरर कहा जाता है. गलत तरीके का खाना खाने से सिर्फ स्किन प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी होते हैं. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम किसे कहते हैं? जैसे हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, डायबिटीज़ होना, ये सब हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं. तो स्किन और खाने का इतना ज़्यादा रिलेशन है कि जैसा खाना खाएंगे वैसी आपकी बॉडी होगी, आपकी स्किन होगी. अभी आगे हम बात करेंगे कि हम किस प्रॉब्लम में किस तरह का खाना खाएं ताकि हमारी स्किन बेटर रहे और हमारी एजिंग जो है स्लो हो पाए. हमारी डाइट के साथ क्या रॉन्ग हो जाता है, थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगी. सबसे पहले है एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक. नमक अगर हम ज़्यादा लेते हैं खाने में, कैसे ज़्यादा लेते हैं? क्या हम अपनी सब्जियों में ज़्यादा नमक डालते हैं? नहीं. लेकिन कैसे नमक ज़्यादा लेते हैं? अब आप पूरा दिन बैठे हैं घर में, कभी बिस्किट खा लिया, कभी नमकीन खा लिया, अचार ले लिया, पापड़ ले लिया, इस तरह से आप एक्स्ट्रा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में. तो ये भी एक रॉन्ग हैबिट है, हमारे स्किन के अगेंस्ट जाता है. दूसरा पॉइंट है एक्सेसिव शुगर लेना, चीनी का ज़्यादा कंजप्शन होना. जो भी चीनी आजकल हम लेते हैं मोस्टली रिफाइंड शुगर होती है, सफ़ेद चीनी, वही इस्तेमाल होती है ना घर में यूजुअली जी. तो उसका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि वो रिफाइंड है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, वो भी आपकी स्किन के अगेंस्ट जाता है. थर्ड पॉइंट इज़ अगर आप ज़्यादा फ्राइड, ऑयली और जंक फूड ले रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है एक्ने होने की. जंक फूड अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है, हम सबको जंक फूड अच्छा लगता है, बट आई थिंक हमें एक अपने लिए लिमिटेशन बना लेनी चाहिए कि हमें वंस अ वीक लेना है या ट्वाइस अ वीक लेना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है. और जो आप बिस्किट, नमकीन या घर में चाय, समोसे लेते हैं, वो सब भी जंक फूड का ही पार्ट है. ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसी को आप जंक फूड कहेंगे, क्योंकि वो सब भी फ्राइड है और जिस तरह के तेल में बार बार तला जाता है वो जंक फूड की कैटेगरी में ही आ जाता है. एक्सेसिव कैफिनेटेड ड्रिंक्स, चाय या कॉफ़ी, बार बार चाय कॉफ़ी पीना, ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करता है. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो हमारी स्किन है, जब हम बात करें डर्मिस की, जैसे अभी आपको डॉक्टर दीपाली ने बताया कि जो सबसे ऊपर लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, तो अगर आप हाइड्रेट रहते हैं, पानी पीते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो सपल रहेगी, अंदर से ग्लो होगा. और अगर हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो हम अपनी स्किन को ज़्यादा डिहाइड्रेट कर रहे हैं, यानी कि अंदर से हम उसको सुखा रहे हैं. क्या इलाज है? अगर मन कर रहा है चाय कॉफ़ी पीने का तो क्या करें? तो उसका उपाय है ग्रीन टी पीना, कैमोमाइल टी पीना, जिसका अभी मैं डिटेल्स में आपको और भी बताऊंगी कि और भी हम क्या क्या कर सकते हैं. लो वाटर इनटेक, पानी कम पीना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है.
अभी हमने पहले भी बताया था कि बहुत लोगों में हैबिट है, आप सुबह उठे 2 लीटर पानी पी लिया, रात को सोते टाइम 2 लीटर पानी पी लिया और आपने कंप्लीट कर दिया कि दिन में 3-4 लीटर पानी पीना है, 5 लीटर पानी पीना है, हमने इकट्ठे पी लिया और पानी हो गया। बट वो एक रॉन्ग तरीका है पानी पीने का। पानी हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यानी कि आधा 1 घंटे के गैप में पीना चाहिए। अगर हम बहुत सारा पानी इकट्ठे पीते हैं तो हम अपनी किडनी को ओवरलोड करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरह से अपनी किडनी को ओवरलोड ना करें और पूरे दिन में रेगुलर इंटरवल्स में हम पानी पिएं। स्किपिंग मील्स, कोई मील ही स्किप कर देना, सुबह टाइम नहीं है तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, नाश्ता देर से किया लंच स्किप कर देना। इस तरह से जो हम मील स्किप करते हैं उससे हमारी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है। और जब एक मील स्किप करने के बाद आप दूसरा मील खाते हैं तो हमारी बॉडी समझती है स्टार्वेशन मोड में है, उस मील को आप स्टोर कर लीजिए, उस फैट को आप स्टोर कर लीजिए। तो वो जो है वो एज अ फैट स्टोर हो जाता है और मोटापा बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मोटापा ना हो, आपका शरीर प्रोपोर्शनेट रहे, तो ज़रूरी है कि स्मॉल मील्स और प्रॉपर टाइम पर फ्रीक्वेंट मील्स होने चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग, इन दोनों से हमारी जो स्किन है डिहाइड्रेट हो जाती है। तो कोशिश करें आप इसको थोड़ा लिमिट करें। और अगर करते ही हैं, आई मीन वीकेंड्स पर या कभी भी अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो कोशिश करें कि अगले दिन आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए विटामिन सी ज़्यादा इस्तेमाल करें, मौसमी का जूस पिएं, पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, ताकि आप अपनी स्किन को वापस रिप्लेनिश कर पाएँ। अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? एक तो आप ये देख ही रहे हैं, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये जो पेट पर काफ़ी मोटापा है, देख सकते हैं आप, और उसके नीचे आप देखिए स्किन पर कितना एक्ने है, राइट। तो सबसे ऊपर जो हमने आपको दिखाया है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि गलत तरह का खाना खाने से कौन कौन से लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं। सबसे पहले है डायबिटीज़। पहले अगर आप देखें तो एक 40-50 की उम्र के बाद ये समस्याएं सुनने को मिलती थी कि उनको शुगर हो गई, एज रिलेटेड है, या उनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो हमारे क्लिनिक में बच्चे भी आते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आजकल बच्चों को भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली ये एज रिलेटेड आज नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि हम गलत तरह का खाना खाते हैं और हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। ये 2 खास रीज़न है कि ये जो समस्याएं हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और किसी भी एज में हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम गलत खाना खाते हैं तो स्किन डिसऑर्डर्स, यानी कि एक्ने होना, रिंकल्स होना, ये सब होते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, एंग्री रहते हैं, तो उसका भी हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आता है। इसके साथ साथ हम अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो हम बहुत फटीग रहते हैं, यानी कि थके हुए रहते हैं। तो अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो वो भी आपकी स्किन पर नज़र आएगा। आप अगर किसी अपनी फ्रेंड को मिलते हैं, अपने किसी रिलेटिव को मिलते हैं, और अगर वो खुश मिजाज हैं या दे स्लीप वेल, अच्छे से सोते हैं, तो उनके चेहरे से ही आपको नज़र आता है। और अगर आप किसी दिन बहुत थके हुए हैं या उदास हैं तो वो भी आपका चेहरा बताता है। क्योंकि कभी आपने सुना होगा कोई कहता है कि आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खुश लग रहे हो। तो बेसिकली ये खुश होना और अच्छा लगना बहुत रिलेटेड है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि खुश रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए जितना अच्छे प्रोडक्ट्स लगाना और अच्छा खाना खाना। हम सबको लगता है कि जो फास्ट फूड हम खाते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा होता है ना कि मुझे तो आदत हो गई है, मुझे तो शाम को ये खाना ही खाना है, ये स्नैक खाना है, मैं तो इसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन ये एक मिथ है। अगर हम अपनी बॉडी को टाइम दें 1 वीक या 10 डेज़ कि हम वो स्नैक छोड़ें, उसकी जगह कोई हेल्दी स्नैक इंट्रोड्यूस करें, तो 10 डेज़ में आपकी बॉडी से जो वो हैबिट है वो छूट जाएगी। इसका साइंटिफिक प्रूफ है। वीक से 10 डेज़ आपको क्रेविंग्स होती हैं, उसके बाद क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं होंगी। तो आपको चाहिए आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर कि 10 डेज़ आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें कि मुझे ये नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। तो 10 डेज़ के बाद आपको 11th डे कोई क्रेविंग भी नहीं होगी। तो इतना तो हम सब अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं टू गेट अ गुड स्किन और अच्छे बालों के लिए भी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नरिशमेंट है वो उसको हम बढ़ाएं। जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमारे को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। मानते हैं आप ये बात? सब मानते हैं। मैदा खा रहे हैं, अगर आप जो भी चीज़ खा रहे हैं तो कोई न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा हो आपको, तो उससे जो हमारी बॉडी है वो अंडर नरिश हो जाती है।
उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? आप ऊपर देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ स्लाइड में भी लिखा है कि उसको ठीक करने के लिए हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट, लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन क्या है? जैसे फिश है, चिकन है। जब हम बात करें चिकन की, अगर आप चिकन बना रहे हैं तो चिकन की स्किन पर फैट होता है, तो उसको बनाने से पहले फैट और स्किन रिमूव करें तब वो बनाएं। इसके अलावा नट्स और सीड्स, यानी कि जैसे बादाम हो गए, आपके अखरोट हो गए। जब हम सीड्स की बात करें, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वेस्टीज में आपको फ्लैक्स सीड्स अवेलेबल हैं, तो आप फ्लैक्स सीड्स कैप्सूल भी खा सकते हैं, बिकॉज ये हेल्दी ऑयल हैं जो कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छे हैं और हमारे हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। तो ये आपको दोनों तरह से फ़ायदा देंगे। और जब आप अपनी जंक फूड को रिप्लेस करते हैं धीरे धीरे हेल्दी फूड से, तो धीरे धीरे जो आपकी डिपेंडेंस है जंक फूड पर वो हट जाती है। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वीक से 10 डेज चाहिए आपको, और आप ये बिल्कुल आदतें छोड़ सकते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकती हूँ। आप ये स्लाइड देख रहे हैं, एक बर्गर और आप देख सकते हैं कुछ फ्रेंच फ्राइज, चिकन, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा होगा। तो ये जो फूड है ये सिर्फ हमें क्रेविंग्स ही नहीं देते, ये हमें गैस भी देते हैं, ब्लोटेडनेस भी देते हैं, डिस्कम्फर्ट भी देते हैं। आप घर में एक रोटी सब्जी खाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप बाहर से एक बर्गर खाकर आ रहे हैं, पिज़्ज़ा खा के आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कोक चाहिए, लिम्का चाहिए, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये घर के खाने से तो नहीं हुआ, तो ये जंक फूड की वजह से होता है कि हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। दूसरा एक और बड़ा रीज़न है, जब हम इस तरह का जंक फूड खाते हैं तो जो हमारी ब्लड शुगर है वो एकदम रेज करती है और एकदम ड्रॉप करती है, यानी कि आपको बहुत जल्दी वापस भूख लगती है। और अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे घटती है, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है जब आपका पेट भरा रहता है। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए और धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। साथ साथ वीक से 10 डेज में जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे। पर ज़रूरत है कि हम ये एडिक्टिव फूड हटाएं और धीरे धीरे हेल्दी फूड इंट्रोड्यूस करें। आई एम श्योर आप लोग ट्राई तो ज़रूर करेंगे एक बार। यस, दैट्स गुड। हाँ जी, तो अब अभी तो हमने आपको ये बताया कि ये आप ना खाएं। अब मैं बताऊंगी क्या खाना चाहिए, बिकॉज वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू अंडरस्टैंड। यंग दिखना है, सबको अच्छा दिखना है कि नहीं? मुझे तो है ना? आप सबको भी है? ग्रेट। The market size and the growth rate of the skin care segment has been increasing. आप यहाँ देख सकते हैं सन 2002 से 2012 तक ये मार्केट कितनी बड़ी है, और इसमें हर साल नई कंपनीज नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करती हैं। आपके स्किन केयर में सनस्क्रीन अलग होते हैं, मॉइस्चराइज़र अलग होते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े एक्टर्स हर रोज़ आके टीवी पे कहते हैं कि आप ये वाली क्रीम लगाइए तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। बट वाई गो प्रीमियम? हमारे घर के पास भी एक किराने की दुकान है और बहुत सारी सुपरमार्केट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम प्रीमियम क्यों जाएं? हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट क्यों खरीदें? उसके रीजंस क्या हैं? द प्रीमियम स्किन केयर is the most attractive segment in the personal care space. The consumer today has changed with enhanced awareness about beauty and wellness. हमारे पास आज की डेट में बहुत इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आज हमने इतना कुछ सीखा है, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ ये कि आप सबको इनमें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी कि हमें ये लगाना चाहिए, हमें सनस्क्रीन लगा के धूप में जाना चाहिए। हम बहुत अवेयर हैं, हमारे पास आज की डेट में बहुत इन्फॉर्मेशन है कि हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। इस लिहाज से हमेशा एक कंज्यूमर वही चीज़ चाहता है जिससे मैक्सिमम रिजल्ट्स आएँ। वो ये चीज़ लगा के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे क्रीम के साथ, जिससे उनको अफेक्ट और रिजल्ट्स लेट मिले, जिससे उनको फ़ायदा ना हो। ग्रोइंग ब्रांड कॉन्शियस, आजकल हम सारे बहुत कॉन्शियस हैं कि हम कौन से ब्रांड्स डालते हैं, हम कहाँ से कपड़े खरीदते हैं, हम कौन सी घड़ी डालते हैं। मुझे हर रोज़ डांटा जाता है कि बेटा अच्छे कपड़े डाला करो, लोग क्या कहेंगे। इसलिए आपको हमेशा, हम बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं इन चीज़ों में। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। जैसे मैंने पहले कहा, पहले घर पे हमारे बूढ़े बुजुर्ग या मेरी मम्मा या दूसरों की मदर्स सारे लगाती थी दही, लेकिन आज की डेट में हम उस पर पैसे नहीं खर्चते। हमारे पास इतनी परचेजिंग पावर है, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम है, जो हम रेडी हैं स्किन केयर पे अपने ऊपर खर्चने को। एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया यानी टीवी, मूवीज़, टेलीविज़न।
हर लड़की कहती है मुझे कटरीना कैफ की तरह दिखना है कि नहीं? An advanced and sophisticated skincare range from Vestige is what Skin Formula 9 truly is. The result of a relentless quest to create the perfect skincare range to fulfill every woman's wish of beautiful and immaculate skin. आपने सोचा है कि Skin Formula 9 हमने इस ब्रांड का नाम क्यों रखा? अभी आपको भव्यता थोड़ा सा बता रही थी इसके बारे में। 9 एग्जैक्टली हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ टाई अप, जो हम वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज के साथ हमने कॉस्मेटिक्स की जो हैं उनके साथ जब टाई अप किया तो हमने उनसे बहुत फॉर्मुलेशंस बनवाई। हमने सिर्फ एक पे नहीं रुके, हमने कहा जब तक हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जिनसे हम संतुष्ट ना हों, जिनको देख के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे कंज्यूमर्स खुश ना हों, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। इसलिए स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स को बनने में कम से कम 3 साल की रिसर्च लगी है। इसलिए इसका जब तक हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे करते हुए जो हमारा 9th फॉर्मूला, जो 9वां फॉर्मूला हमारे प्रोडक्ट्स का बना, हमें वो लगा वो सबसे पास है परफेक्शन के। इसलिए हमने इस प्रोडक्ट का नाम रखा है स्किन फॉर्मूला 9। ये एक स्किन केयर रेंज है जो सच में काम करती है। आप सब ने काफ़ी हाथ खड़े किए थे कि आप सब कुछ ने बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं स्किन फॉर्मूला 9 के, आपको एक्सपीरियंस है इसका। इसलिए मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि दीज आर बैक्ड बाय इयर्स ऑफ रिसर्च विद स्पेशल इंग्रेडिएंट्स दैट वर्क एट सेलुलर लेवल टू इम्प्रूव स्किन हेल्थ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन, हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे करोड़ों लाखों सेल से बनी है। इसलिए हम सेलुलर लेवल पे जाके आपकी स्किन पे काम करते हैं और प्रोडक्ट्स तभी इतने अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। We are scientifically and technologically advanced in our formulations for these products. ये scientifically बहुत advanced products हैं। जैसे कि पहले भी डॉक्टर शुचि ने ये मेंशन किया, इसमें स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है जो कैंसर को ट्रीट करने में जाती है, जो हाई एंड डिजीज़ेज़ होती हैं, जो हाई ट्रबलिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उस लेवल की टेक्नोलॉजी है जो आप तक हम लेकर आए हैं, एंड स्पेशली फॉर्मुलेटेड इन स्विस लेबोरेटरीज। It's a product, like I said earlier, is made in Switzerland. Switzerland is a quality seal synonymous with nature, purity, and precision. These products are recognized all over the world for their unique quality, reliability, and luxury. Switzerland के बारे में हम सब जानते हैं, फोटोज़ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके आगे वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटीज़ के बनते हैं। जो वहाँ के रेगुलेशंस हैं, जो वहाँ के लॉज हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एंड वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स को पास होने देते हैं जो हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं। इसलिए तभी हम चाहते थे आप तक हाईएस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आएँ। हमने स्विट्ज़रलैंड की कंपनी CRB के साथ टाई अप किया है। नाउ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, हम अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, आपको हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में पता है, लेकिन किस टाइप का कंज्यूमर स्किन फॉर्मूला 9 की कैटेगरी में फिट होता है। एक हमने सबसे पहले इसके लिए सोचा अ वुमन हु इज सोफिस्टिकेटेड, स्मार्ट, एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट। जैसे मेरे सामने इतनी बैठी हैं बिल्कुल आपकी तरह, तभी हमने आपको चूज किया। विद एन एज ग्रुप ऑफ 30+। अब ये नहीं है कि कोई बिलो 30 की एज का इसको यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन हमने इस कैटेगरी के लिए 30+ इसलिए रखा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हैं एंटी एजिंग, और जो पहले साइंस होते हैं एजिंग के वो 30 की उम्र के बाद थोड़े ज़्यादा दिखने लगते हैं। इसलिए हमने 30+ की एज ग्रुप रखी। कस्टमर्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड नीड फॉर हाई एंड परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। एक कस्टमर जो जानता है एक हाई एंड प्रोडक्ट की अहमियत, उनकी कीमत के लिए उनको वैल्यू जो दे रहे हैं वो उनको वैल्यू पता है फॉर द मनी दे आर पेइंग फॉर देयर प्रोडक्ट। कस्टमर्स हु आर लुकिंग फॉर अ स्किन केयर रेंज टू डिले एंड टैकल एज रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम्स। जिनको एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हैं, जिनको स्किन केयर की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो गोल्ड यूथ एलिक्सर नहीं यूज़ करेंगे। इसलिए समवन जिनको ऐसी डे टू डे लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो हटाना चाहेंगे, उसके लिए है ये।
customers with good purchasing power who are willing to spend on high performing skin care products. इस पे मैं एम्फसाइज थोड़ी अहमियत डालना चाहूँगा कि जो कस्टमर अश्योर यूज़ करते हैं वो स्किन फॉर्मूला 9 यूज़ नहीं करेंगे, वो आपके स्किन फॉर्मूला 9 के कंज्यूमर कस्टमर नहीं बनेंगे, बिकॉज उनके लिए जो नीड्स हैं वो अलग हैं। तभी अगर हम ये चाहते तो ये प्रोडक्ट्स हम सारे अश्योर की रेंज में निकाल सकते थे, बट द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट द प्रोफाइल ऑफ द पीपल चेंजेस विद द प्रोडक्ट। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोग अश्योर खरीदते हैं, जो अश्योर की स्किन के, जो हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो स्किन फॉर्मूला प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। इसलिए उनको अप्रोच करना भी आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। दिस इज़ फॉर द सिंपल रीज़न कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं एंड आप नए लोगों को टारगेट करें जो स्किन फॉर्मूला लाइन के लिए परफेक्ट हो। बट एक और क्वेश्चन होगा आपको, हमारे पास जैसे मैंने मेंशन किया 17 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन तब भी हमारी अभी तक 12 मीटिंग्स हुई हैं स्किन फॉर्मूला 9 की, एंड हमारे मुश्किल से 250 सेलेक्टेड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको हमने स्किन फॉर्मूला 9 के लिए चुना है। यू आर अमंगस्ट द टॉप 250 फीमेल वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स who have been selected for selling this premium line. You are one of the most dedicated Vestige distributors. आपने प्रूव किया है कि आप वेस्टीज परिवार के बहुत एक अहम हिस्से हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप ड्रिवन हैं। You are the role model for an ideal customer for this sophisticated range. You have the ability to understand its value, and you have the foresight to see the potential it holds for the future. आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लाइन आगे आने वाले समय में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। You have what it takes to give it a good start and take it in the right direction. हम ये सबको ओपन कर सकते थे कैटेगरी, लेकिन हमने स्किन फॉर्मूला 9 सिर्फ चुनिंदा डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इसलिए रखा है क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप वो लोग हैं जो इस ब्रांड को, इस कैटेगरी को अगले लेवल तक लेकर जाएंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं? Skin Formula 9 training. The first and most important step to succeed in this business is to attend the Skin Formula 9 training. हम ट्रेनिंग पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पूरी नहीं होगी तो हम उसको आगे कन्विंसिंगली नहीं बेच सकते। अगर मुझे पता नहीं होगा कि किसकी स्किन टाइप के हिसाब से किसको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट देना है, किसको यूथ एलिक्सर देना है, किसको रिपेयर स्लीपिंग मास्क देना है, तो वो कस्टमर भी कन्विंस नहीं होगा, वो उतने खुश नहीं होंगे प्रोडक्ट खरीदते हुए, ना ही वो इसको यूज़ करना चाहेंगे। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। This training is specially designed to equip you with the extensive product knowledge, teach you the unique demonstration techniques, help build your confidence with empowering sessions of focusing on health and complete well-being. आज हमारा जितना भी सुबह से सेशन रहा है वो आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए तो ज़रूर है, लेकिन वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप फिट रहें, आप एनर्जाइज रहें, आप योगा करें, आप अच्छा खाएं, आपकी स्किन तो अच्छी रहेगी, लेकिन आप माइंड से, आप दिमाग से, आप दिल से भी स्वस्थ फील करेंगे। बिल्डिंग योर टीम। आप अपनी टीम स्किन फॉर्मूला 9 की कैसे बिल्ड करें? पोस्ट द ट्रेनिंग यू कैन फोकस ऑन एक्सपैंडिंग योर बिजनेस एज वेल एज योर टीम। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। टू बी एलिजिबल टू ग्रो योर टीम यू नीड टू रिटेल स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स वर्थ ₹10,000 विद इन द फर्स्ट मंथ। पहले महीने स्किन फॉर्मूला 9 की ट्रेनिंग के बाद आपको पर्सनल रिटेल करना है मिनिमम ₹10,000 का, तभी आप एलिजिबल होंगे 3 और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नॉमिनेट करने के लिए। अगर आपने पर्सनल सेलिंग ₹10,000 से की है मिनिमम,
तो आप 3 लोग और अपने अंडर नॉमिनेट कर सकते हैं, जो हमारे पास पूरी लिस्ट आएगी। आफ्टर दैट हम उन 3 लोगों की प्रोफाइल को अच्छी तरह स्टडी करेंगे, उनको देखा जाएगा अच्छी तरह से, एंड वी विल अप्रूव एंड रिव्यू and tell you whether they can go ahead with it or not. The confirmed downlines will then undergo the compulsory Skin Formula 9 training. जैसे मैंने पहले भी कहा कि ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जब आप लोग जो नॉमिनेट करेंगे उन लोगों को आगे हम स्किन फॉर्मूला 9 की कंपल्सरी ट्रेनिंग देंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्किन फॉर्मूला 9 का किट। This is a personal kit for every Skin Formula 9 consultant. आप जितने भी यहाँ पे आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये आप सबको एक एक पर्सनल किट। इसके अंदर वो सारे टूल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे स्किन फॉर्मूला 9 को सेल करने में, स्किन फॉर्मूला 9 एज ए प्रोडक्ट को लोगों को समझाने में और उसको ग्रो कराने में। इसमें आपकी बहुत हेल्प होगी 2 तरीके से। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज रखेगा, आपका सब सामान स्किन फॉर्मूला 9 से रिलेटेड, आपके सारे टूल्स, सारे गाइड्स, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको इस किट में मिलेगी। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। अब मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक यू। Could I have a mic, please? Thank you. अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस किट में क्या क्या है। सबसे पहले ये प्रोडक्ट कैटलॉग, हम आपको इस किट में 3 प्रोडक्ट कैटलॉग देंगे। इसके अंदर हर एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि ये आप सब आज सुन चुके हैं, लेकिन फिर हम जो सुनते हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। हम नहीं चाहते आप कुछ भूलें, इसके लिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वर्ड बाय वर्ड, कि कौन से प्रोडक्ट में क्या है, उनको कब कब यूज़ करना है, उनको कैसे यूज़ करना है मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और इसमें सारे बेनिफिट्स भी दिखाए गए हैं कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उनसे आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। Next is this guide which is called Beauty Basics. इसके अंदर ना ही सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, बट आप अपनी स्किन को कैसे ब्यूटीफुल रख सकते हैं, कैसे एजिंग की प्रोसेस को कम कर सकते हैं। आपको सेलुलर लेवल पे नॉलेज है तो उसके बारे में बताया जाएगा। आप अपनी स्किन टाइप कैसे कर सकते हैं। आप अपने कंज्यूमर के पास जाएंगे, जैसे अभी डेमोन्स्ट्रेशन में आपने देखा, हमारे पास लेडीज़ आई, उन्होंने कहा हमारी ड्राई स्किन है, हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है, हमारी ऑयली स्किन है, तो हम क्या लगाएं। लेकिन कैसे पता चलेगा आपको कि ऑयली स्किन है, कैसे पता चलेगा ड्राई स्किन है। उसके लिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। आप उनको अपने ऊपर यूज़ करके देखिए। पहले एक एक क्वेश्चन का एक एक सिंपल आंसर है। जैसे जैसे आप आंसर देते जाएंगे, नीचे आपको एंड में दिखेगा आंसर के साथ आपका स्किन टाइप कौन सा है। इसके ही साथ साथ इसमें आपके स्किन के न्यूट्रिशन के बारे में है। इसमें कुछ हेल्दी रेसिपीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप अपनी डाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने न्यूट्रिशन को कैसे और बढ़ा सकते हैं, एंड आपके बारे में आपको कौन सा मेकअप किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वो सब। नेक्स्ट है ये स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट कार्ड्स। ये आपको हर प्रोडक्ट के लिए 5 पीस मिलेंगे।
सो यू हैव 20 इन टोटल फॉर 4 प्रोडक्ट्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का पकड़ा हुआ है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट, जहाँ आप अपना नाम और अपना नंबर दे सकते हैं। ये उनके लिए है जो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हों। आप किसी से मिलें, वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है या उस टाइम नहीं ले पाए लेकिन आगे लेना चाहेंगे, तो आप उनके पास ये अपना नंबर और नाम के साथ कार्ड छोड़ सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में लिखा है और स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में लिखा है, सो दैट फॉर लेटर कभी उनको ज़रूरत पड़े तो आप तक पहुँच सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। आप जब भी मीटिंग के लिए जाएंगे, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर डेमो कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे किया एक डेमो, अगर आप डेमो करेंगे तो उनको भी वही विश्वास होगा जो विश्वास आपको है प्रोडक्ट के ऊपर। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें यूज़ करनी होंगी, जैसे डॉक्टर शुचि ने पहले यूज़ किए वेट वाइप्स। आप पूरा फेस क्लीन करेंगे पहले, उसके लिए वेट वाइप्स हैं, सो दैट द प्रोडक्ट की एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट हो और उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आए जैसे उसके लिए वी हैव इंटेंडेड इट टू बी। ये हैं प्रोडक्ट सैंपल्स, ये प्रोडक्ट के सैशेज हैं। हर प्रोडक्ट के 6 सैशेज हैं जो आप डेमो जब देंगे उसके बाद आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को दे सकते हैं ताकि वो घर जाके भी इस्तेमाल कर सकें, उसके रिजल्ट्स देख सकें और आपके पास वापस आ सके सेल के लिए। वो बहुत छोटे थे इसलिए मैंने कहा कि आप प्लीज़ किट में रियल साइज भी इंक्लूड कीजिए, जो प्रोडक्ट का एक पीस which comes in this beautiful pouch. इसमें आप देखेंगे पूरे प्रोडक्ट्स का एक पीस है जो आप यूज कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ मिलेगी, ये मेरी फेवरेट है क्योंकि मुझे किट नहीं मिलता तो मैं बाकी चीज़ों से ही खुश हो जाता हूँ। ये है आपका पर्सनलाइज्ड स्किन फॉर्मूला 9 ब्रांडेड प्लानर। ये वो प्लानर है जिससे आप अपनी पूरी मीटिंग्स के बारे में इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। इसमें आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डायरी है, बिजनेस है, प्रायोरिटी है, आप एड्रेसेस नोट डाउन कर सकते हैं। आपको और इस प्लानर में मिलता है ये स्किन फॉर्मूला 9 ब्रांडेड गोल्ड पेन, ताकि आपको पेन के लिए कभी खोजना ना पड़े, ना मांगना पड़े। दिस विल बी फॉर यू, सो यू कैन डू योर बिजनेस एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। ऑल्सो आपको एक कैलकुलेटर मिलता है एंड स्किन फॉर्मूला 9 की ब्रांडेड पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में जितनी प्रेजेंटेशंस आज हुई हैं वो सारी डाउनलोडेड हैं पहले से, ताकि अगर आप किसी मीटिंग के लिए जाएं तो आपके पास सारे टूल्स हों जो आप यूज़ कर सकते हैं। और आने वाली मीटिंग्स में जो भी प्रेजेंटेशंस नहीं होंगी वो इसमें आपको मिलेंगी, विच यू कैन यूज़। नेक्स्ट वी हैव द कस्टमर प्रोफाइल कार्ड। इस कार्ड में आप अपने कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव हों या जो बन चुके हों, उनकी डिटेल्स लिखेंगे, जैसे नेम, ऑक्यूपेशन, उनकी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल। उसके बाद उनकी स्किन में क्या प्रॉब्लम थी मेन, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगी। उनकी स्किन टाइप क्या है, उनका डेली स्किन रूटीन क्या है। जैसे आज आपने सुना कि मॉइस्चराइज करना ही करना है, क्लेंस करना ही करना है, टोनिंग करनी ही करनी है, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। वैसे ही उनका रूटीन क्या है, वो क्या फॉलो करती हैं और उनको क्या करना चाहिए, एंड उनको क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं और उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए। इससे आपके पास ना ही सिर्फ
जो आपने सेल किया उसकी जानकारी होगी, लेकिन आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास डेटाबेस होगा, ताकि आप फिर से जा सकते हैं उनके पास टू शो। ये है आपका ऑर्डर फॉर्म। जब आप सेल करें तो उसके लिए ऑर्डर फॉर्म होगा आपका, जहां पे आप नेम, एड्रेस, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा पैक साइज, इन व्हाट क्वांटिटी, किन्होंने कितना लिया है उसके लिए। और एक ये स्किन फॉर्मूला 9 का ब्रांडेड नोटपैड, जहां पे आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें, जिस कंज्यूमर से मिलें, उनको आप जब देंगे ये, जैसे आपने किसी को रेकमेंड किया, वो अपनी स्किन के लिए ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में नीम भी खाएं रोज़, राइट? आप कुछ ना, आई एम श्योर अगर आप स्किन फॉर्मूला 9 बेचेंगे तो आप साथ में कोई ना कोई उनको सप्लीमेंट या कुछ रेकमेंड करेंगे। उसके लिए उनको आपने क्या क्या रेकमेंड किया है, उनको किस हिसाब से क्या यूज़ करना है। अगर उनको यूथ एलेक्सर यूज़ करना है तो 2 बारी दिन में, अगर उनको रिपेयर स्लीपिंग मास्क यूज़ करना है हफ्ते में 2 बारी, तो कैसे, वो आप इसमें सब लिख के दे सकते हैं, ताकि उनके पास एक कॉपी हो एंड उनके रिजल्ट्स जो हों वो इफेक्टिव हों। ऑल्सो स्किन फॉर्मूला 9 के ब्रांडेड एनवेलप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मिलेंगे पर्सनलाइज्ड आपके नेम्स के साथ स्किन फॉर्मूला 9 के विजिटिंग कार्ड्स, which are very professional, which you can use for meetings, and they will help you to make your business grow more. Is that all? Great. Thank you, Dr. Shuchi. A big round for her, please. Now building your customer network. आपको अगर कस्टमर नेटवर्क अपना बढ़ाना है तो आप कहाँ से शुरू करें? आप शुरू कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स के साथ। आप की फैमिली में किसी के दोस्त हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जो कुछ यूज़ करना चाहें, वो स्किन फॉर्मूला 9 क्या हिस्सा बन सकते हैं, वो कंज्यूमर्स बन सकते हैं। आउटसाइड योर सर्कल, आपके सर्कल के बाहर भी लोग हों जिनको आप जानते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट हाउसेस, कंपनीज में वर्किंग वुमेन आप सारी हैं, आप सारी जानती हैं कि आप सबके लिए टाइम निकाल लेती हैं, लेकिन अपने लिए हमेशा थोड़ा कम पड़ता है कि नहीं, है ना? ऐसे ही आपको ज़रूरत है, वैसे ही बहुत लोगों को ज़रूरत है। सो कॉर्पोरेट हाउसेस, ब्यूटी पार्लर्स, ऑब्वियसली किटी पार्टीज, रेजिडेंट्स ऑफ कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, जो आपके आसपास का सर्कल है, उसमें बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कंज्यूमर्स होंगे और जो स्किन फॉर्मूला 9 को इस्तेमाल करना चाहेंगे। नाउ स्किन फॉर्मूला 9 एक्सक्लूसिव स्टोर्स। स्किन फॉर्मूला 9 के लिए हमने पहले से ही यही सोचा था कि सिंस प्रोडक्ट इंटरनेशनल है तो उसकी लुक एंड फील इंटरनेशनल रखेंगे। जब हमने लुक एंड फील इंटरनेशनल रखी तो हमने कहा कि हम एक्सपीरियंस भी इंटरनेशनल रखना चाहते हैं, जो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे खरीदे जाते हैं, वही एक्सपीरियंस आपको भी मिले। इसके लिए हमने स्पेशल स्किन फॉर्मूला 9 स्टोर्स बनवाए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं जो अभी न्यू दिल्ली, रायपुर, गुवाहाटी, मुंबई और कोलकाता में हैं। ये आगे आने वाले स्टोर्स में आप देख सकते हैं, ये ऐसे लगते हैं, विच इज़ एन इंटरनेशनल फील। यहाँ पे आपकी स्किन टाइपिंग होती है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट, एक आपको कंसल्टेंट मिलेंगे जो आपको पर्सनल केयर देंगे, आपको पर्सनल अटेंशन देंगे अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द यूजेज एंड अबाउट द सेल एज वेल। These are modern shop-in-shop outlets। ये हमारे रायपुर, दिल्ली, गुवाहाटी ऑफिस के ही पार्ट में स्पेशल स्किन फॉर्मूला 9 जोन बनाए गए हैं,
जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। यही सिर्फ नहीं है हमारे पास आपके लिए, हमारे पास और भी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो हम पाइपलाइन में अभी हमने रखी हैं, जिन पे हम काम कर रहे हैं, जो हम आप तक जल्द से जल्द लेकर आएंगे। एक फुली डेडिकेटेड वेबसाइट स्किन फार्मूला 9 के लिए, ताकि आपको स्किन फार्मूला 9 के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, अगर आपके पास एक लैपटॉप है आप खोल के उसमें से दिखा सकते हैं। जो नए न्यूज़ है, जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, व्हाट इज़ न्यू विद स्किन फार्मूला 9, व्हाट इज़ गेटिंग बेटर, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। आपके फ़ोन पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिससे आप अपना सेल फ़ोन लेके उसमें से क्वेश्चंस आंसर करके अपने कंज्यूमर जो आपके सामने बैठे हैं उनकी स्किन टाइप बता सकते हैं और उनको वहीं पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट। और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्द नई और लोकेशंस में स्किन फार्मूला 9 स्टोर्स खोलने में। नेक्स्ट लॉट में गाज़ियाबाद, चेन्नई और अहमदाबाद में आपको जल्दी ही स्किन फार्मूला 9 के स्टोर्स मिलेंगे। Like you can see, this is the website quality, from images to material, सब कुछ international quality का। Any questions? नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ फिर, नहीं? Well, thank you for your time. Thank you, ladies. It was a pleasure. अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को, Mr. Gautam Baliko, on the stage. Thank you so much. So good morning ladies. पसंद आया जो आपको मिल रहा है? Right? मेरी एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप में से कितने लोग हैं जो, पहले मैंने आपसे पूछा था जो सुंदर और होना चाहते हैं, पर नेक्स्ट जो मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जो स्किन फार्मूला 9 के साथ वेस्टीज के अंदर उसी तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं, BMW जो प्रतिभा भटनागर जी के पास भी है? एवरीबॉडी, फैंटास्टिक। जैसे मिस्टर युवराज ने आपको बताया कि स्किन एज अ कैटेगरी जो है वो हर साल लगभग 22 से लेकर 25% की ग्रोथ कर रही है, राइट? यानी कि अगर वो इंडस्ट्री इस टाइम पे 5,000 करोड़ की है इंडिया में, तो आने वाले 4 साल के बाद स्किन केयर की इंडस्ट्री हो जाएगी 10,000 करोड़ की, यानी कि इट इज गोइंग टू डबल अप। आप एक चीज सोचने की कोशिश कीजिए कि लास्ट ईयर यानी कि इस साल मार्च में जब वेस्टीज ने अपना टर्नओवर क्लोज किया था, तो फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर था वेस्टीज का 300 करोड़। 300 करोड़ के अंदर, और सिर्फ इंडिया के अंदर, राइट? हमारे जो टॉप अर्नर जो है उनका चेक 27.5 लाख रुपया। वेस्टीज के अंदर 150 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम लाख रुपए से ऊपर है। 10 से लेके 20 लाख के बीच में कम से कम 9 लोग हैं, राइट? 50 से लेके 60,000 कमाने वालों की गिनती मेरे पास भी नहीं है। अब अगर आप सोचिए कि आज 4 साल के बाद जब स्किन केयर इंडस्ट्री होगी 10,000 करोड़ की, उस 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री में स्किन फार्मूला 9, आप लोग जो डेडिकेटेड इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपने आप को अपडेट करेंगे इस स्किन फार्मूला 9 को, जो बैक्ड बाय रिसर्च है, वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जब आप लोगों को देंगे, अगर उस 10,000 करोड़ में से आप सब और हम सब मिलके सिर्फ 5% मार्केट शेयर लेते हैं, तो वो 5% मार्केट शेयर सिर्फ स्किन फार्मूला 9 के पास होगा 1 साल के अंदर 500 करोड़ का। जिस पॉइंट की तरफ मैं लीड करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 300 करोड़ के टर्नओवर में हाईएस्ट इनकम 27 लाख रुपए से ऊपर है, कम से कम 150 से ज्यादा लोग लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं, अगर सिर्फ 500 करोड़ स्किन फार्मूला 9 का टर्नओवर होगा, तो आज जिस हॉल में आप लोग बैठे हैं, तो आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनका चेक कम से कम 20 से लेकर 40 लाख रुपए पर मंथ होगा? कैन यू सी द अपॉर्चुनिटी विच इज देयर आपके लिए? एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्या आज की
भारतीय नारी घूंघट निकालती है, राइट? अगर घर में मुश्किल आए तो साथ खड़े होके अपने हस्बैंड से ज्यादा पैसा कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है कि नहीं, राइट? आज इंदिरा नूई से लेके आईसीआईसीआई बैंक की अगर आप हेड देख लें, दुनिया में, इंडिया में पिछले 10 साल से भारत सरकार कौन चला रही है, राइट? सो नंबर 1, लेडीज, आपको कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो मैं एक चीज कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है, जो व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक वो व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर सफल बनना है और लाइफ में जो आपकी डिजायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, अगर उनको पूरा करना है तो सिर्फ एक चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। एक कहानी सुनना चाहोगे? यस, थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं आपको तब भी सुनाता। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, ये कहानी मेरी है। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नौकरी करते थे, राइट, फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। बचपन में जब सबसे पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, हर कोई कहता है डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, कुछ ना कुछ। मेरे से जब भी मेरे मदर पूछती थी या फादर पूछते थे बेटा बड़े होके क्या करोगे, मैं कहता था बिजनेस, राइट? सो हमारी फैमिली में कभी किसने बिजनेस किया नहीं था। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो मेरी मदर ने मेरे को काफी समझाने की कोशिश करना, देख बेटा बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। यू नो, देयर आर बिजनेस कम्युनिटीज जिनके खून में ही बिजनेस करना है, वही सफल हो सकते हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते। जब फिर पूछना बेटा बड़े होके क्या करोगे, मैं कहता था बिजनेस। उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करनी, देख बेटा तेरे फादर नौकरी करते हैं, रिटायर होंगे, उनको पैसे मिलेंगे, पेंशन लगेगी, हमें एक घर भी बनाना है, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, और तुम, हमारे पास पैसा तुम्हें नहीं होगा देने के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए, इसलिए तुम बड़े होके एक नौकरी करना। देख तेरे जो चाचे का बेटा है वो कहता है मैं पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, तुम ऐसा कुछ सोचो। थोड़ी देर के बाद फिर मेरे से कुछ दिनों के बाद पूछना बेटा क्या करोगे बड़े होके, मैं कहता था बिजनेस। मेरी मदर को बहुत टेंशन होगी, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को याद है मैं जब 10th में था तो मेरी जो जन्म कुंडली होती है ना, वो बहुत बड़े बड़े पंडित को, जो दिल्ली में या जम्मू में बड़े बड़े पंडित थे, उनको सबको दिखाई और हर एक ने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है, राइट? सो हमारा जो ग्रुप आज के दिन पे 500 करोड़ का ग्रुप हो गया, राइट? हर साल हम 100% की ग्रोथ कर रहे हैं। इस 9 नवंबर को मेरे को दुबई के अंदर, इनफैक्ट यूएई के अंदर, रसल खेमा के अंदर, ऑप्टेनर जो एक दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मॉनिटर करती है, उसके अंदर आपकी कंपनी वेस्टीज को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिल रहा है। यू नो, जोशियों ने क्या कहा, पंडितों ने क्या कहा, मेरी मदर क्या सोचती थी, उस चीज के ऊपर मैंने कभी नहीं सोचा। तभी मैंने अपना हाथ कभी किसी जोशी या किसी पंडित को नहीं दिखाया और अपने हाथ में कोई अंगूठी नहीं डालता। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर जिंदगी में सफल बदलना है तो सिर्फ एक चीज को बदलना है, अपने सोचने के तरीके को। उससे आपको अच्छा सुनाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, अच्छा बोलोगे और आप हमेशा सफल होगे। आज मॉर्निंग में मुझसे हमारे जो बाहर टॉप अर्नर्स काफी आए हुए थे, आप लोगों के हस्बैंड्स एंड अपलाइंस एंड यू नो, मैं उनको कह रहा था कि आई एम सो लकी। सारे के सारे आदमी लोग आज बाहर, अंदर सब 100+ लेडीज के साथ, कौन? मैं। उन बेचारों का मुंह नीचे उतर गया, सबके सब बैठे हुए थे बाहर साइड पे। मैंने और मिर्ची लगाने के लिए कहा, मैंने कहा आज ऐसा नहीं लग रहा कि कॉलेज के दिन वापस आ गए, लड़कियों के कॉलेज की जब छुट्टी होगी
राइट, उसके इंतजार में सबके सब बैठे हो। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपसे मुलाकात कम होती है, तो व्हाई डोंट यू गिव अस अ टिप, दैट्स द लास्ट टिप आई वुड लाइक टू गिव टू यू बिफोर वी गो ऑन टू द सर्टिफिकेशंस। आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, मैंने उनसे कहा कि अगर आप सोचते हैं कि वेस्टीज का बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आप गलत हैं। अगर आप सोचते हैं कि वेस्टीज का बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स या मेंबर्स बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको मैं कहता हूं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले अपने अंदर लीडरशिप लाओ कि स्किन फार्मूला 9 या वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे को इतनी नॉलेज हमारे पास हो कि ताकि हमारे डाउनलाइंस या जिस भी व्यक्ति के पास जाए और हम बोले, अगर हम धीरे से भी बोले तो लोग अपने कानों को स्ट्रेन करें ताकि हमारी बात का एक लफ्ज भी मिस ना हो सके। मैं हमेशा ये एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया। अगर हम उसको कह रहे हैं कि स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, आपको पिछले 6 साल से जो प्रॉब्लम्स हैं, वेदर ब्लेमिशेस की या दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह की, वो सब हट जाएंगी, वो पर्सन प्रोडक्ट नहीं लेता, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट खराब हैं। इसका सिर्फ मतलब ये है कि हम उसको इंप्रेस नहीं कर सके। सो नंबर 1, हमें अपने आप को इतना अपग्रेड करना है कि हमारे बोलने के तरीके, हर एक चीज से लोग इंप्रेस हो। हमारी प्रोडक्ट की नॉलेज में कैसे हम अपने हाथ क्लीन करके पूरा प्रोफेशनली इस बिजनेस को ऑपरेट करें। नंबर 2, जो हमारे डाउनलाइंस हैं जिनको हम वेस्टीज में या स्किन फार्मूला 9 में लेके आए हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको लीडर बनाएं, कि उनको गाइड करें कि उनकी क्या गलती है, किस प्रकार से सही करना है, जो सही कर रहे हैं उसके लिए मोटिवेट करें। नंबर 3, अपने बिजनेस को ग्रोथ लानी है तो एक काम करना है कि अपने साथ लीडर्स लेके आने हैं। कौन? नेटवर्क मार्केटिंग के नहीं। आप लोग किटी पार्टीज में जाती हैं, यस और नो? वहां पे तंबोला खेलती हैं, राइट? या कुछ करती हैं। आप देखेंगी अगर 15-20 लेडीज भी हैं, उनमें से एक लेडी होगी जो सबसे आगे आके कहेगी कि मैं खिलाती हूं, मैं आपको हेल्प करती हूं, ये करती हूं, वो करती हूं। आपसे अपने आप आके इंट्रोडक्शन लेगी, आप क्या करते हैं, आपकी साड़ी बड़ी अच्छी है, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, ज्वेलरी इज वेरी नाइस, आपने कहां से ली, आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है। These are the people जो आउटगोइंग है, they are the leaders, they should be brought into your business, जिनके अंदर झिझक नहीं होगी लोगों से बात करने की, राइट? सो लेडीज, ज्यादा समय ना लेते हुए आपके और सुंदरता के बीच में जो वक्त है, राइट, ताकि आप इन किट्स को ले सकें और जाके इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकें। फॉर द सर्टिफिकेशन मैं बुलाना चाहूंगा बैक ऑन टू द स्टेज हमारी मास्टर ऑफ सेरेमनीज, वंडरफुल, ब्यूटिफुल, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू भविता सिंह। Alright ladies, now you've become trained consultants of Skin Formula 9. तो इस बात पे एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं, please all of you. So now let's distribute the certificates, and for that I have Mr. Gautam Bali on stage, and I would also like to call on stage Mr. Yuvraj Bali to come and do the honors. Alright, so आप सबसे गुजारिश है कि जैसे जैसे मैं नाम बोलूँ जल्दी से आके अपने सर्टिफिकेट्स ले लीजिएगा और एक्सपीरियंशियल जोन में जाकर वहाँ पे प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, सूची मैम है वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी, हमारे पास टाइम कम है। हमारी पहली स्किन फार्मूला 9 की सर्टिफाइड ट्रेनर है मिस जारना जरीवाला। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाए, तालियों की आवाज़ दाएँ बाएँ हर जगह से आनी चाहिए। अगली है मिस आशा बेन किशोर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट इज मिस अपेक्षा शर्मा, बी शर्मा। देन वी हैव मिस अमिता रावल, मिस अनीता रविंद्र पाटिल, मिस अरुणा बेन शाह,
मिस भावना उत्कर्ष गोसावी, मिस भावना बेन सुरेश भाई, मिस भूमिका देव दवे, सॉरी, मिस चैताली जयेश जावेरी, मिस भाविका सोनी, then we have Miss Chetna Kalpesh Seth, Miss Dharmishta Vora, Miss Dhivani M, Miss Divya Jayanti Bhai, मिस हर्षिता गणपत भाई पटेल, मिस हीरुल जानी, मिस दक्षा परेश कुमार वोरा, मिस दिव्या हर्षल पटेल, डॉक्टर समीर शाह, गीता खटेरकर राणा, गोल्डी जी सिंह, हिमाली बी मास्टर। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you wealth and everything else. 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 मिस हेमाद्री मुकेश चंद्रा देसाई, मिस इंदुबेन अल्पेश भाई पारेख, जीत हो आसान, कदम डॉक्टर समीर शाह, मिस इंदुबेन अल्पेश भाई पारेख, मिस जगोत्रा मंडल, मिस जागृति बी, मिस जागृति राजेश कुमार भगत, आगे बढ़े दुनिया ये देखती रहे, मिस जानवी प्रकाश,
मिस जोया बहन विजय भाई, मिस जिमिनी दीपक पटेल, मिस ज्योति वी टेलर, मिस ज्योति चिंतन मिस्ट्री। चल पड़े हैं दिल में सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। ज्योति त्रिवेदी, जयश्री पटेल, कैलाश सेठ, कैलाश बेन पटेल, कश्मीरा डी चंगानी, मिस केतना बेन एच, मिस खुशबू गोयल। हाथों में हाथ हर कदम पे साथ, जीत हो आसान कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else। अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे, देखती रहे। Wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else। मिस खुशबू गोयल, मिस जेमिनी दीपक पटेल, मिस कोमल निवातिया, मिस कृपाली विजय पंगल, मिस कृष्णा गोपाल कालका प्रसाद, सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। मिस लीना महेश आहूजा, चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। मिस लीना रावल, Wish you well, मिस लेखन बेन बी शाह, wish you well, मिस माधवी के, wish you well and everything else, wish you well and everything